In the house, all the champions can raise their hand, ask the question, and we have just 15 minutes. They'll be here. You can keep asking those questions, but this will set the tone. So raise your hands, ask your question, and they'll try to answer these questions if they have answers. Otherwise, we can always catch up later. Sajid, you do. What were you asking me to do? No, no, you sit at the chair. I can. So before we begin, maybe we can have a quick introduction from everybody so that the people know. This champions meet Atlassians, Atlassians meet champions. Right, so we'll give you one mic so you can use this. I'm Tamanna and I'm the Champions Program Manager for Asia Pacific and Middle East Africa. That's about me. Over to Sven. I'm Sven. I'm Atlassian's AI evangelist, so I can talk about everything Rovo. Hi everyone, Varun Jain, Solution Engineer at Atlassian. I definitely remember like some of the faces. I've seen the community faces on LinkedIn. Good to see you all. Hey, hi everyone. Good evening. Good to be here. So I'm part of the solution engineering, similar to Varun, based out of Bangalore in India itself. And yeah, happy to be here and see all of you. Please feel free to ask us any questions you might have around Rovo or anything outside of other products and collection as well. Anybody wants to start? Yeah, I think you should start with the questions. No, so let's be very clear. So we'll maybe start from one person and then that person. Do we want to popcorn like this again? For questions mandatory, you have to ask. No, so let me kick things off. We know, so all of us organize events except Kishan. Kishan is here. So Kishan creates content, but most of us organize events. One thing that I would ask is how, if you could talk, maybe Sven, you could start, and then Varun and you can also pitch in around. When we talk about Atlassian, we all have seen the writing on the wall that focus is moving towards Rovo, towards solutions, toward connections. What does this mean for the evolution of Jira itself in terms of a product? This is a thing that I was speaking to somebody else at Barcelona as well. While focus will move towards AI and getting answers from Jira and Confluence and associated products, what's the roadmap for Jira product as the star which used to be of the show looking like? No, it's on. Okay, good. Good question. So as we move along, I think we concentrate more on the Atlassian Cloud Platform. I think that's where the value lives. Even though Jira is an important app now, not product, but app, we will see that when all teams need to collaborate, it's not everything is live in Jira. There's Confluence, there's Loom, there are other things. Even if you take the third-party connectors like the Slack connector or the SharePoint connector, that's actually where the organization knowledge is. And I think also that is Rovo will be the interface at the end that's just gonna ask like, hey, how's this project going, and put in a task for me that exactly for this project. So Jira will always be there, and I think like project management and tracking is an important thing. But I think what we see is that we really get the value out of Jira and Confluence combined by the Atlassian Cloud Platform, where everything runs on the Atlassian Cloud Platform, including Rovo as the center of the Atlassian Cloud Platform, where you can really make sense out of this data. That would be my answer. Just to add, sorry, it's a bit too loud.
So just to add, there's definitely a lot of things happening on the ground as we see, like there's so much of information, especially the world we live in. There's so much of information. The right approach is like how we can curate right information from so much of information. And same thing is happening within Atlassian. So from the product side, definitely I've been like personally talking to a lot of product managers and customers. There's more excitement in terms of like Jira is not going anywhere. Jira is there. There's a lot more things coming on Jira, but then there's world outside of Jira. And that's where now we are actually going and talking to our customer, like how they can build systems, not just using Jira, but then build their system of work. Like we got our ways of working and we have built our system of work. You got your specific workflow, you got your system of work, and how we can help to bridge those gaps where you have some gaps in terms of going from A to B. So that's how I see. And at the same time, wherever those gaps are, probably not every place we will be coming with Atlassian, but we also have our point of view, understanding the team, and that's our bread and butter, like within Atlassian. So to keep it very simple, there's a lot of things happening. Jira is definitely the base, but then how we go outside of Jira, there's things around like Jira Product Discovery, Rovo, AI. DX is becoming part of our AI ecosystem. Then we got the browser company. So there's a lot of things happening, but then the whole intent will be like how we can combine all this together and then help build a ecosystem for our customers so that then they can start getting better insights, better analytics. They can run automation cross-platform as well. So that's the kind of thinking, like get out of Jira definitely, and then start thinking on the broader sense as well. Just add one more thing here. So we invest a lot in Jira. We have a lot of teams like Jira. Jira will be still the core because that's where the processes are running. The only thing that you see evolving is that Jira is not just for IT teams. We want to have it for all kinds of teams to run all your processes on Jira. So just saying that there's a whole like movement of the Atlassian Cloud Platform, but still we are investing a lot in Jira. It's not going away. Just to add on to that sentiment, right? We are seeing that, first of all, from product point of view and from innovation point of view, there are a lot of new features which are coming on to how we can enhance how you use Jira, right? How our customers are using it. And then anything that we are building in around our product, like from Rovo standpoint or from Loom standpoint, from Teamwork Collection, we are making sure that how all of it or most of it can culminate into a Jira work item, be it for tech or non-tech, right? So there are very small product enhancement features coming in as part of the Jira interface. And then something that, and Sven, please correct me if I'm wrong, but something that we have seen a lot of our customers are utilizing are how Rovo works very well with a lot of your Jira automation that you are already using, right? So that duo becomes very powerful. So in no way we are saying that one is stopping the other, but the duo and the combo is something that customers can use to solve a lot of the use cases. And that's how we are trying to sort of see it, and we want customers also to see it. One last thing. It's a topic on its own, actually a massive topic, but because we are within the community, we know like we have been relying on Marketplace as well heavily to cover the gaps what we have in the Atlassian ecosystem. The other thing to add is like a lot of those gaps what we had and was covered by Marketplace vendors. Probably some of them we are also trying to do it natively because a lot of the questions was like why I have to rely heavily on the Marketplace apps. Like again, some of the expertise we still are going to rely on the app vendors, but then there are certain things because it makes overall the entire ecosystem much more easier. So rather than going and buying more different apps, like how we can do it natively, that's the other direction. Again, that's another massive conversation on its own, but then this is again something we are also exploring, like how we can do some small things to just make life much easier for our customers and the users as well. I have a specific questions on JSM, now specifically talking about
What are the plans? Okay, okay. What are the plans, and how do you guys are seeing to expand it to make more customer related data, and moving towards the typical CRM side where there is a lot more information and people do not have to rely to or connect it with to HubSpots and the likes of HubSpots. So are there any thoughts or things that you're already planning to make it more into the ITSM or in generally JSM field? That's a good question, and thanks for asking that. See, in all transparency, and we know like you are our key stakeholders as well, right? So in all transparency, yes, there is a lot that we are doing to make sure how we can, or how at least our product can take in the data, like you mentioned, CRM, the likes of HubSpot or anything, right? So the recent announcement that we made around CSM, right? So it has the data model, the object model at the backend where we can pull information, customer related information for our customers that can come and sit in a CSM as part of the service collection, and that can work with a JSM as well, right? Now, having said that, we know it might not be as mature, let me say, for the lack of a better word. But yes, we are conscious of the fact that customers would want to ultimately bring that end customer data as well. And that is something that we want to encourage as well, right? So the whole idea is that our service collection, along with JSM, CSM assets and all, sits in the flow of work for our customers, right? When we are talking about not only ITSM, but extending the ITSM from IT DevOps point of view. So the idea is, let's say if you are a customer, we have given you, let's say, an ITSM, but we know that there's a lot of your end customers' feedback coming in as well, right? Be it from a product point of view or from services point of view. So we are trying to sort of extend it at the same time, give it a parallel use case as well for not only tech teams and IT ops teams, but your non-tech team and business teams also, you can enhance or start using the CSM side of it. So a lot of conversation you will see in the industry is, right, most of the legacy players have become a portal and a bot sort of a solution. So there's a portal, there's a bot, and there are a lot of things happening at the back end, right? We are trying to steer a bit from that conversation and from that perception to solve the larger use case. Long answer to your short question, but specifically and that's where we are trying to see what we can do enhancement from a JSM standpoint as well. Like Asset now is an app that we have taken out of it. It's a universal app, and there are a lot of use cases, as Suhan mentioned, right? Not only tech, but business use cases also that you can use Asset for. So we are trying to do, but we do understand their challenges and their concerns customers have, which you might be having, you might be listening as well. And we are working toward it. But if we talk about from product priorities point of view, or like list of priorities, launching CSM was definitely one, because that was a gap that we wanted to solve. And then we are slowly taking the other use cases and concerns as well. So hope that answers your question. Anything, Suhan? Was it that good, or you are just like hopeless answer? It was a hopeless answer maybe? No, but on a lighter note. But yeah, there's a lot going on. I'm sure you'll keep getting and hearing information as well. But we are working towards the challenges. We know the challenges. Yeah. Yeah, thank you so much. I was a big fan of Jira, but I'm more bigger fan of JSM because how it helps the product teams. And I keep on answering the different ways why it is not just there. Now I have a better answer. So I'll answer this to the people that I work with. Definitely. Thank you. I have two questions. So my name is Mayur Jadhav. I work for HashiCorp. I have two questions. One is a basic one, and one is more on the raw side. The first one is, what was the reason in a Jira that, Atlassian changed projects to spaces? Basically, it's creating a confusion now. Confluence also have a spaces, and Jira has also have a spaces, right? Now the second question is like, how the Atlassian is open to now Row is using a 3 LLMs. Right? OpenAI and the Mistral and Llama, right? How they are open to have the customized LLM, like IBM has their own Watson X, right? And now IBM is, we are the only team within the IBM that has the approval for the Row, right? So what are the Atlassian is, planning for that to have their own LLM so that IBM don't have to depend on the other LLMs, right? So what are the plans on that customized LLM used within? I'll start with the first one. The reason of like changing the names per se. So one of the thing, project is, as you might be knowing, it's a very loosely
defined term within Atlassian ecosystem. So we started definitely long time back as a bug tracking tool, and then we slowly moved into the agile space. Agile, probably there might be some people in the room coming from the Scrum background or agile background. Again, project is not something which has been widely used in that world, but still as an agile project management tool, we were saying like project is going to stay there. So a lot of those legacies, then there is scaling agile space, but in all sense, where I'm going towards is like it was creating a lot of confusion for the users, for the customers, the enterprise customers. And as we are maturing as a product, as organization, we decided like we don't want to dictate our customer how to use our tool. We want actually them to tell us their workflows, and the tool should actually support their workflow. So it's always used to be the other way around, like similar way, like when it comes to work items, what we have come across from Epic hierarchies, like the entire hierarchy, now we are saying, we say it simple, we keep it simple rather, it's work item. Now you tell the system what your structure is, whether you are going from maybe Epic at the top level, like if you're following the SAFe framework, or if you have any other Spotify framework, you're going squad model, you're going maybe Scrum at scale model, like you can actually define your ways of working. If you have OKR model, we can definitely cater for those things. But then what was happening in past, at the bottom level, it has to land with Epic. So it was becoming very restrictive and prescriptive, and customers were constantly adjusting to the tool rather than it has to be the other way around. So that's the mindset we started embracing now, like, okay, now we are going to empower our customer more, our users more, and get away from this specific words. Same goes for spaces, same goes for a lot of those areas, because we were constantly getting feedback like project is not the right word, the right way of defining. Epic is not the right level. We were constantly getting the resistance from the industry, and we definitely understand like not all organizations or users work the same way. So that was really needed, and that's like a massive change that happened. Like we were like very happy. Like now we can go and talk to our customers and tell them, and even the users like, yeah, you can now start using the way you want Atlassian ecosystem. So that's the first part. The second part. Let me just add to that. Super funny that you mentioned that you don't like the word spaces, because everyone was telling us we don't like the word projects, and now we changed it, and now it's the other way around. But this is just like if you have 330,000 customers, that is what you get, right? You can not make it right for everyone. So that is super funny. I hear that. I'm with Atlassian. I joined 2011, so I hear that. Since then, like this, it's not a project. We have a features. We track our features in here. We track our microservices in here or whatever. It's not a project. And projects also for us is something totally different. We can't just like have that in Jira. Project has an end, and a space in Jira normally doesn't have an end. But anyway, as you said, just like everyone runs it differently. Coming to the second questions. At the moment, we will still leave it like it is. We just like choose the right LLM vendor based on your request. So we know your request, and then we just like choose the right vendor. And the LLMs are changing so fast that we also change our approach, which question we solve or just like direct at which vendor, which LLM vendor. That we are also changing this. And what we hear is customers are super happy with that, because then they don't have to think. In the past, it was just like, we want to choose it, right? We want to use OpenAI because we know that's the best LLM. Now the LLMs are pretty pair. I mean, they're specialized. Claude is just like better with coding and things, and God knows what next in the next release of OpenAI comes with OpenAI. No one knows actually what's happened there. It's going so fast. So we will stick with that, but we hear you, especially if we just like talk about isolated cloud. We probably also think about just like, okay, what is it? Is it an Atlassian hosted LLM that we put in there? Is it bring your own LLM? Which just like then we have the problem that people say, oh, Rovo is not giving us the right answers, and then it's just on us. But it's your LLM that you bring. So it's really a delicate topic at the moment. But at the moment we see that this is the best approach for most of our customers. As this whole
AI world moves on, and that goes quick, we probably will see that, okay, there will be just like a handful LLM vendors out there that we can use. And then it's also not specialized in anything. It's more multi-purpose LLMs that we will see. And maybe then we will just like say, okay, pick your own. But at the moment, we feel like this is the best approach for our customers. They get the best results with this approach at the moment. That's what we see. Anyone want to add to that? Yeah. Also on the LLM side, so again, like probably down the line, we might start competing with other LLM vendors. That's not the intent. I think our main USP for Atlassian is the teamwork graph. And that's where we differentiate. Like it's not about LLM. You can bring in all the LLMs we got in the world, but what actually makes Atlassian intelligence difference is the teamwork graph, that connected graph what we have, which sits under your LLM, and that's where the power is. And that way, what actually makes us very unique in the market. So, and again, to give you the perspective, like this has been going on from last 20 years, like because of this teamwork focus from last 20 years, like we have built that database around that LLM, and you can bring in your LLM, OpenAI, Claude, like whatever LLM, but the power will still lie with teamwork graph. And that's the mindset we want to tell to our customer, like, yeah, doesn't matter LLM. Here we are talking about contextual information, and contextual information will come and with the underlying teamwork graph what we have built. So just wanted to add that as well and give it back, like, yeah, LLM, a lot of people will talk about like LLM, but yeah, think about the graph, the database, what we have built. That's really the power. Yeah, no, I think everything is said and shared. Just 2 lines on the first part. I think we are trying to be more team agnostic when we are calling a project as space, because project sounds like same with PMP, right? A lot of the teams end up doing PMP, but Kanban actually started from manufacturing organizations, right? So that's the idea we're trying to take, like, so that a lot of non-tech teams can adopt to space, and it can be like they can think of it like something that they can start using. They're already using it, and that's where the feedback comes in. On the I just have one point on the LLM and the entire conversation. I think we need to move slightly away from which LLM you are using, and that's when the point comes. Focus on the output. Like, is Zoho giving you the output that your end users are wanting? Is it good enough? If not, how can you refine your prompt and all that, right? Because we have so many LLMs in India, especially. We are now in free. We can use Perplexity, and ChatGPT is launching and all that, right? So it ultimately, I think the ground will neutralize like which LLM it is, but what kind of response we are getting and what kind of prompt we are putting in. So that's where maybe we should start focusing. Does anyone have a pressing question? I want One to- last we'll take. Rest we'll take during networking, okay? I want to put a few points over here. Like in starting, it was we calling it as a project, and now it is going to be the space. So first, we have to be convinced our higher management team it is a project and it makes sense. Now we are convincing them, no, it is a space, so it is like that. So I have first thing over there. Second thing, on the LLM side, I want to know on the part of security. Like I'm coming from the finance institution, finance company. So over there, it is very hard for us to convince them the data is secure if we are using the open source AI or the Rovo as well. So there is a no sharing of data, nothing is there. But still, I want some tips from you to how we can convince them if we are using Rovo, it will be very easy for us being an architect or a solution designer or a Atlassian administrator. It will be makes our work easy. On the third, I have the ITSM point. On the ITSM, what I am looking for, I want one thing, like I was convincing before my senior management to move from ServiceNow to ITSM tool. The reason is behind that I personally like the ITSM, but there is a few things which is missing, what I am feeling. I want to know because how we can move our data easily from ServiceNow to the ITSM. I didn't found any related article, forum or anything over there, because what I'm feeling, if I can prove them, it is a very easy to move from ServiceNow to ITSM. So I think I've bid a win in my org.
Service now to JSM. I think it's not one silver bullet I can give it to you, like how you can easily move, but usually the way because we are like customer focused always, and one of the thing, it all boils down to like how you're using your current system. Like that's one thing we want to understand. So there's no kind of like app what we have built, like, okay, you plug in that app, connect with JSM and ServiceNow and the entire information will flow. Definitely not. And that's where, I don't know if you are aware, like we heavily rely on our solution partner expertise over there. So firstly, what we do, we understand what exactly the workflows you have built, because ServiceNow, as we know, it's a beast on its own. You can do so many things, so many modules. So it's really important for us, like from the Atlassian, to understand what are those workflows you have built, what are those scriptings, what are those different systems you are talking to. And once we have that understanding, we then give you step-by-step guidance to move from ServiceNow to JSM. And probably we help the customers, our customers, to get better with, again, it's all outcome focused. We are not just trying to say like, yeah, get away from ServiceNow and do the same thing on Jira Service Management. Then there's no point. Like, why would I go through the entire change management? So that's where we try to also understand like how we can do better as we are going through this transformation. So it's like a massive conversation, and that's how we start getting into the details. But on its own, there's no single app I can suggest you or tell you like, okay, you connect both of these tools and the information will flow seamlessly. And that's not the intent as well, because then we wouldn't do justice for the entire migration from A to B. Probably rest of the questions we can take during the networking, if that's okay. Just want to say we are around here, so just like grab us in the next break, and we will answer any questions that you have. Thank you so much. Huge round of applause for all the Atlassians in the room. Thank you. Now what I'll quickly do is this particular event. Oh. Thank you. So this particular event we organized to celebrate our champions. Champions are contributing to community in different forms. One is through organizing events. Some of the community members from Bangalore are already here who have seen how the champions bring the events live. And this event is to celebrate them, to celebrate their efforts for building community. So I want to give like a quick shout out to all the champions who were selected to come to this regional connect event. So let me start with that. Okay, wait. Okay, so we'll start with our first champion, Girish, whom you already know is the Bangalore Ace champion. Okay, he's just outside. He was busy with one another event, then he jumped back into this event. He's been active for 6 years. He's hosted over 70 events. Huge round of applause to Girish, who has maintained the rhythm of these. Girish is there. Shout out to Girish. And some of his hobbies are bike riding, and he also learns drumming. So I've just captured those. Thank you, Girish. And huge shout out to Girish for organizing this event. Also, like all the setup you see is like his creative mind that has put it all together. So I'm really indebted to his help here. Next we have Sajit Nair, who does a lot of things, like he's Delhi Ace Chapter champion, then QuizWiz champion, then creator. He's also a CAB member. We have a special CAB team for champions. He's part of that. He's also been active for 6 years. He's done 157 events. Huge round of applause for Sajit. Sorry about the data mismatch. So that slide, there's like some data glitches, so pardon me for that. He's also a ukulele player,
sometime maybe next event we can have him play something for us. And he's a quiz master. We call him quiz host he's done the quiz with ACE chapter for us. And he was also conceptualizing the mind behind bringing all the sessions together for this event. So thank you, Sajid. Thank you for doing all that you do for community. Huge round of applause for Sajid. Then we have Anand, who has been part of our Chennai chapter, and maybe it's more than 6 years, Anand, but he's done more than 6 years here. He's hosted 47 events in these 6 years. 70. There's major data glitch, I think. But he's also Agile and Scrum Master. He's done a lot of trainings, and he's also a coach. So huge round of applause to Anand. We have Subramaniam, who is a Visakhapatnam ACE champion and also Forums champion. He contributes to both these platforms very actively, and he's been active in the program for 5 years. He's hosted 75 plus events, and he's also got 7,000 plus points on the forums. Oh, those are kudos points. This is like different points. So yeah, he told me today he's into rifle shooting. He's done a state level rifle shooting. He's a tarot card reader. If anyone wants to get tarot card read from him, you can do that. He's also an author. He's like a multi-talented person. So kudos to Subramaniam as well. We have Siddharth, who is Greater Noida chapter champion. He's been active for just 1 year, but he's hosted more than 23 events. He is into live training. He's also an agile coach, and he also loves skating because his kid is into skating. So that's about Siddharth. Huge round of applause for Siddharth. So here we have Surat ACE champion, person with multiple contributions. He runs events. He also contributes on forums. He's also one of the very successful creators. As soon as he posts something, it goes viral. And he's also into like business analyst and all those. But I don't know other hobbies. So maybe Mayur, what are your other hobbies? Riding. Yeah, biking is also one of his other hobbies. Then we have Trivandrum ACE leader. He's just like 1 year into the program, almost coming to like I think close to 2 years now, and he's hosted around 6 events. But the quality of event, if you see from Ashwin, like the way he writes emails to the speakers, the way he wraps up the event, I think those are like some professional event management training he has. And he did tell me that he's used to do like 4,000 people event management when he joined the program. So I really was impressed by how good his events are. And he's doing really well, and he just started the chapter, and his chapter is getting 100 plus attendees. So kudos to Ashwin. Now we have Avneet. Avneet, although he's just 1 year into the program, but he's been like a regular community member, like you all are there. He's been part of the Pune chapter for so many years in the past, and then he gradually became a champion. He's hosted 6 events. He's also contributing slightly to the forums, and he's doing really good for the Pune chapter. He's a safe agile specialist. Yeah, I also don't know Avneet's hobbies, but Avneet, any hobbies you have in particular? Okay, he likes cooking. Huge round of applause for Avneet as well. We have Indore ACE champion. He's Rishabh Jhawar. He's hosted 16 events in the last 1 year, and he is doing a lot of volunteering activities. He's also a product manager at his company. So, and I think hobbies-wise, I just know volunteering is like your passion. You keep doing that. Anything else, Rishabh? Volunteering is one of the... Okay.
kudos to Rishabh. He's done fabulous job with Indore chapter. And I just want to say that I never imagined that we would any day we'll see Indore chapter getting 200 attendees, 200 plus, and they always do that. So they'll tell me we are going to get these many attendees, and they are always getting that number. I don't know how, but they are also like experts in event management. Now we have Kishan, who is our forums champion. He's been active with us for last 3 years, and he is also a migrations expert. He is he has garnered 6,000 points, and he's doing really good with forums contribution. Kudos to Kishan. And here we have Dipanshu. So Dipanshu is our ACE champion as well as forums champion, active with us for more than 6 years, hosted 68 plus events, and has forums points around 3,000. And he is a plant lover. In many events, he does give out plants to attendees. It's a very nice gesture, and I really like it. He's also an operations specialist. He does engineering operations at his company. So kudos to Dipanshu for doing all that for community. Now we have our influencer in the room, Deepak Rai, who disappeared during the first half, and he's back. He has been active for 3 years. He's hosted 35 plus events. He's also contributing to YouTube videos. He's also a creator, author, and a trainer. So he does multiple things, and he's just engaged the Mumbai community very nicely. Kudos to Deepak for all that he does. I think, yeah, that is all. The program feedback, I'll share the QR code later, and we can continue that late at the end of the day. Now I'll give it over to Ruchi, and she can tell us about the next. All right, so before we move forward, we want to capture this moment. So I request all our champions to kindly join us up on the stage for a group picture along with our Atlassians. Let's have our leaders, our experts up on the stage. All right. We have all our champions here and our Atlassians. Whoever is comfortable, on the count of 3, 2, 1, say cheese. We are capturing your smiles right here. Let's do a different pose. Atlassian's pose, yeah. Let's go. Amazing. Thank you so much. Well, we have something interesting lined up for you, something super special. It's our stand-up comedy act. I request everyone to please stay tuned. After the picture, we'll have the act. For the rest of the people, I think we have a long night. So I would request, there is a professional portfolio photo booth outside. So you can take your portfolio shoots as well, right? Just spend some time there so that they'll at least click 5 to 6 photos of yours. Make sure you scan the QR code so your photographs will directly come into your mobile. Okay, thank you. But be here in next 10 minutes. We'll start the stand-up show. Thank you. Act with our stand-up comedy act. I request everyone, all our team members, to please settle down and call in your members who are outside the ballroom. We have a few of our members who have just recently joined us, so we have done the introduction of our first row, but we also want a quick introduction about the people who have joined us right now. Maybe your name and what you do and what do you like doing, like your hobby, apart from the professional work. Hi everyone. This is Santosh. I'm working as a systems manager in Sonas Networks. We are into telecommunications, and we cater major telecommunication service providers across the globe. My hobbies are into nature. I generally feel more with the nature. Amazing. Thank you so much. Can we also increase the sound volume of the mic, please? Okay. Moving forward to you. Yes.
Hi, I'm Tarang. I'm working as a senior SRE at Okta. So I've been attending Atlassian events from a long time now, over a few months, and I was really excited to be a part of the Atlassian community, and that's when I reached out to Tamanna, and that's what brings me here. Hoping to be a contributor to the forum and to the community soon. Thank you. Thank you so much. Maybe we can pass. Hi, this is Soumya Ranjan. So I work as a this is Soumya Ranjan. I work as a senior associate at JP Morgan, and my hobbies are cooking and photography. Hi all, my name is Rachna and I work as a project coordinator with Microgenesis TechSoft, and I like crafts and arts. That's all I can say. Thank you. And we have few of our members here. Ma'am, over to you. Thank you. Hi, I'm Krishma and I work at FCM Travels. I'm quite a fan of, organized stuff and all, and Atlassian is one of the product which keeps everything organized. So I'm happy that I have introduced some of the Atlassian products, to our projects here in FCM India. Hey everyone, I am Sonal. I work as a senior backend developer with FCM, and this is my first Atlassian community project, so really looking forward to it. And apart from tech, I am into sports, so I majorly play basketball and badminton. Wonderful. That's so good to know. And also, sir, a little bit about you. Hello everyone, myself Manoj Chaudhary, and I'm working as a MIS lead analyst in Axis Bank, and I'm a long participant with Atlassian community, attending all the community events and all the events of Atlassian community. And my hobby is singing songs, listening music. That's all about myself. Thank you. Well, you mentioned your hobby is singing. So maybe would you like, we have 2 minutes more with us. Would you like to sing like 2 lines of your favorite song? Oh, let's do that. हो इन मस्त निगाहों से मुझको न पिला देना, इन मस्त निगाहों से मुझको न पिला देना, तुम एक मुसलमान को काफिर न बना देना। हो मोहब्बत में निगाहों से, हो मोहब्बत में निगाहों से जुआ को जाम लेते हो, किसी की बात करते हो, किसी का नाम लेते हो। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ ना उसे किसी ने कहा है ना सुना है, मुलाहिज़ा फरमाइए हुजूर। सर जिस पे ना झुक जाए उसे दर नहीं कहते, सर जिस पे ना झुक जाए उसे दर नहीं कहते, हो हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते, सर जिस पे ना झुक जाए उसे दर नहीं कहते। थैंक यू। It's a very long song. Thank you so much. We loved your sporty spirit. Like, I just asked him and he hopped onto the stage. That's the spirit, that's the energy that we are looking for. Thank you once again. And sir, we would love to know more about you. Hi, good evening everyone. This is Hari Babu, working as an architect in UST Global. So recently, 1 year back, I started as the Atlassian Success Champion, and yeah, still I am contributing. So I would love to contribute more as well. So coming to my hobby side, I am watching movies, playing cricket, all all normal. Thank you. Thank you so much. And with this, we have one of our members here as well. Hi, how are you doing? It's going good. So this is Anurag. I'm a software developer at Echo, and so if I come to my hobbies, I am a badminton player. I'm a professional swimmer. So the hobbies which I can't show now. So I started this Atlassian community 6 months back. I have attended few events, and I'm regularly in touch with Tamanna and Girish. So yeah, it excites me, and I want to basically contribute more to this community. Thanks. Thank you so much. And we have one more member here. Hello, sir. Hi, everyone. Myself, Avinash. I work for Dell as a tech lead. So I'm attending Atlassian events from last 2 years. I have been at many events. And actually,
I'm not a developer for Atlassian, but I mean, my team is a user for Atlassian product like Jira and Confluence. So there are multiple products actually we are using, and my hobbies mostly blogging. I'm into tech blogging and cricket. Yeah, those are my hobbies. Wow, tech vlogging. Amazing. We have a content creator here with us. Are you also vlogging this event? Maybe few snippets of it. Yes, of course. Amazing. So with this, it's time for us to now begin with our super special performance. Just a couple of things before our comedian joins up here on the stage. I would request you all to please put your mobile phones on silent and refrain from recording. Let's enjoy this performance live. Give our full attention to our comedian. So can we please put our phones on silent, please? All right, it's already on silent. Amazing. So with this, it's now time for us to begin with our super special segment. Well, the comedian joining us up on the stage, I would say he's sharp, he's relatable, and there's one more thing, he's hilarious. I'm so sure you're gonna love this segment, this session. So folks, with a big round of applause, can we welcome Rajat Chauhan? Welcome, Rajat. हेलो मैम, गुड टू सी यू. अरे गुड टू सी सब लोग यार, प्यारे प्यारे लोग आए आप लोग यार. ताली एक दूसरे के लिए, ताली एक दूसरे के लिए. आप लोग बिल्कुल ही डिफरेंट. मैं देख लिया आपने इतनी मीटिंग अटेंड कर ली, पीपीटी अटेंड कर ली, कोई फ़ायदा नहीं है. पार्टी करवा दी आपसे, पार्टी के नाम पे बुलाया था आपको, कह रहे हैं नहीं. कोई बात नहीं मैम, बनाते हैं पीपीटी, एक्स की भी पीपीटी शेयर कर देंगे आपसे हम लोग. पर कोई बात नहीं. कितने वो जो प्यारे लोग जो बहुत ज़्यादा कहते हैं फैमिली कम एम्प्लॉयज़ कौन कौन से हैं, बस रेज योर हैंड ताकि मैं समझ पाऊँ. अच्छा एम्प्लॉयज़, अच्छा वो रंग बिरंगे कपड़ों में आए हैं. अरे ओके. अरे चैम्पियंस कहाँ पर? चैम्पियंस क्लब, चैम्पियंस. अरे बढ़िया. कहाँ से चैम्पियंस? कई लोग इंदौर के हैं, मुझे इतना पता है. और कहाँ से हैं? सूरत, बहुत बड़े टेक्सटाइल से. कहाँ भाई आप कहाँ फंस गए आप? ठीक है, गुड गुड गुड. हाँ नोएडा. अरे भाई गो बैक. गुड. नहीं गो. नोएडा में नो लिखा है? नो है, ठीक है, गुड. बट नोएडा से काफ़ी कैसा लग रहा है? साफ हवा लेके जानी है पैकेट में, बता रहा हूँ. घर को गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट. ठीक है नोएडा. लाइक गुड टू नो. देखो बिकॉज एवरीबडी आई एम अज्यूमिंग टीम मीटिंग एक्टिविटी कराई होगी आपसे ताकि जान जाओ दूसरे को, जिसमें मन किसी का नहीं था इंटरेस्ट. आई नो रूम में गर्ल पावर की कमी दिख रही है मुझे, और आपकी आंखों में दिख रहा है मुझे कुछ तो है ये. आई एम विद यू गाइज, आई एम विद यू. एक तो सारे ब्लैक पहन के हैं और पीछे चेयर का कलर भी ब्लैक है. ऐसा लग रहा है बस मुंडियाँ चमक रही हैं. आपका पूरा शरीर मर्ज हो चुका है उन कपड़ों के अंदर. गुड. नोएडा से हो गए, और बाकी सूरत सेकेंड, और बाकी फरीदाबाद, गुड़गांव. अरे सारे अपनी जगह कहीं आए हैं. पुणे सर, अरे बिल्कुल ब्यूटीफुल प्लेस पुणे. चेन्नई मैम वो बोल सकते हैं. आप इनका चैट जीपीटी मत बनो. नहीं सर, चेन्नई सर, ठीक है. ये हुई ना बात सर. हाँ इग्नो. बट और कोई और लास्ट कौन बचा है बाकी? मुंबई सर, बहुत बढ़िया सर. एंड कितने लोग मैरिड है यहाँ पे? मैरिड पीपल इन दी ऑडियंस, क्लैप. अरे सारे बहुत. सिंगल पीपल? अरे काफ़ी लोग बचे हैं. अरे मैम आप तो बिल्कुल मिर्च बन के आए हो. मुझे लगा नींबू लेके आता ना, मैं लगा देता आपको सुई से लगा के ना कहीं दुकान में. हाँ इट्स अ ग्रीन फॉरेस्ट. वो जल चुके हैं यूएस में काफ़ी, मैं बता रहा हूँ, इतना नहीं जाना हमारे को. बट गुड यार. यू आर मैरिड बाय एनी चांस? ओके ठीक है. सारा का बैकग्राउंड में यू आर मैरिड. आपने बताया नहीं था पहले, हाथ नहीं खड़ा किया था आपने. अच्छा क्लैप. ओके. एंड कितना साल शादी को आपके? 10. मैम वो ग्रेजुएटी से आगे निकल चुके हैं आप तो. 10 साल. एंड यू हैव किड्स ऑल्सो? 1 kid. मैम ओके. क्या महंगाई या ऑन रोड कितने का पड़ा था बच्चा आपको? कितने का पड़ा था ऑन रोड? बहुत महंगा. देख रहे हो कितना भी पैसा कमा ले आदमी, वो आखिरी में लगता है कि डायपर में अगर एक बार सुसु और कर देना ये तो पैसे वसूल हो जाएंगे मेरे, बस एक बार. पर मैम गुड मैम, कोई बात नहीं. एंड इज इट लव मैरिज, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज. बैंगलोर में ही? अरे राजस्थान में. तब तो मैम तो सही टाइम पे शादी हुई है आपकी. 20. अरे क्या बात करो, उतने में 2 जाती है मैम. 26 पे आप क्या बात कर रहे हो? 12 पे तो आपका गौना हुआ होगा, रोका हुआ होगा. ये कहाँ? आनंदी तो आप ही लग रहे हो देखने में शक्ल से. अभी टीवी की आनंदी की शादी अब हुई है, आपकी 26 पे कहाँ मैम? क्यों? लड़का छोटा था? पढ़ाई 26 मैम. गुड मैम, लाइफ में अच्छा करो. ऐसे थोड़ा जान जाते हैं दूसरे को. इधर देखो ऐसे बैठे लोग, वो देखो ऐसे बैठे हुए, ऐसे पकड़ के बैठे हुए. कह रहा बस गुदगुदी करने आता हूँ मेरे पास. सर ये एटीट्यूड गुड़गांव में चलता है जहाँ से मैं आता हूँ.
पहली बात तो जो लोग बैंगलोर रहते हैं जो क्लैप करना, बैंगलोर जो रहते हैं, गुड गुड, अरे ब्यूटीफुल प्लेस में रह रहे हो आप, पॉल्यूशन नहीं है, बढ़िया है, ट्रैफिक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको पता है कोट आता है आपको, इफ़ यू वांट टू क्या कहते हैं, गो फास्ट गो अलोन, इफ़ यू वांट टू गो फार गो टुगेदर। बैंगलोर में दोनों ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी लाल बत्ती में मिल जाओगे आप। पर द बेस्ट पार्ट इज, आपका मुझे एयरपोर्ट बहुत अच्छा लगता है जो बनाया ना आपने, एयरपोर्ट वनतारा, सारे जानवर रखे हैं, हाथी जानवर, हाथी नॉर्थ इंडियन सब रखा है, मैंने देखा वहाँ पे सब रखा है उन्होंने। बट इट्स अ ब्यूटीफुल एयरपोर्ट मैम, गुड डूइंग गुड इन लाइफ। बाकी नोएडा गुजरात जो भी नोएडा से हैं मैम ठीक कर रहे हैं। मैं गुड़गांव से, तो पहले अपने बारे में बताता हूँ, मैं गुड़गांव से आता हूँ। एंड मैम मैं दिल्ली से गुड़गांव ये सोच के मूव हुआ था कि मेरी लाइफ का ये अपग्रेड होगा, नहीं है। पर जब भी आपका मन हो, कभी अगली बार ये कहते ना एटलांटिशियन आपको बोले कि आप गुड़गांव में हम लोग करते हैं कॉन्फ्रेंस, एक काम कर लेना गुड़गांव में, मैं तो अपनी गाड़ी में आगे से हनुमान जी लगा रखे हैं प्लास्टिक वाले, देखा लोग लगा के रखते हैं प्लास्टिक वाले, मैंने ये सोच के लगाए थे कि ये मुझे बचाएंगे। पर यकीन मानिए जब 6 स्कॉर्पियो रॉन्ग साइड से आती है ना, हनुमान जी खुद मेरी तरफ मुड़ जाते हैं कि बेटा तुझे बचाने की इच्छा नहीं करती, बल्कि जैसी तेरी विंडशील्ड टूटी जय श्री राम कर चला जाऊंगा, तू यहां धक्के खाई उगाड़ के। बैंगलोर में सिर्फ ट्रैफिक ही है मैम, क्योंकि होता है बारिश होती है ना, मौसम सुहाना हो जाता है। गुड़गांव की दिक्कत हो जाती है। गुड़गांव बनाया था किसी हलवाई ने, उसने सारी सड़कें बनाई है चीनी की, जैसी बारिश आई घुल गई, खत्म। मैंने रात में लगाई है गाड़ी रोड पे, सुबह उठाऊं रोड ही नहीं है मेरी, मैंने कहा गाड़ी के नीचे से रोड कौन खींच के ले गया ऐसे। इट्स अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड मैम। पर नोएडा इज अ गुड प्लेस। नोएडा में जहां भी रह रहे हो आप लोग, सूरत से, आप लोग कहां से ब्रदर, आप लोग फरीदाबाद, अच्छा फरीदाबाद, आप लोग सांगली कहां भाई है, अरे महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। और आप, अरे भाई साहब पोहा नगरी, थैंक यू फूफा जी। एक हर शो में फूफा जी आते हैं कि मैं रुक के बताऊंगा सबको हो क्या रहा है यहाँ पे। सर अच्छे आदमी, सर शादीशुदा हैं सर आप, सर मैम रख दीजिए फोन, रख दीजिए सर फोन रख दीजिए। सर आर यू मैरिड, कितने साल शादी को? सर अब खड़े होकर मत बताओ, ये संदीप महेश्वरी नहीं चल रहा। हाँ प्लीज, कितना टाइम? सर आपका भी बाल विवाह हुआ है? सबसे हाईएस्ट कौन है यहाँ पे, मैं देख लूँ कितने शादीशुदा, सबसे हाईएस्ट शादीशुदा वाला 16 से ऊपर, 16-1, 16-2, सर आप ही पत्थर हो यहाँ पे। और सबसे कम 1 साल, सिंगल माइनस हो गया भाई तू, सबसे कम नहीं होता भाई वो तो। अभी कितने साल के हैं आप, अभी कितने साल के हैं? 26, कोई दिक्कत नहीं है, अभी लड़के पे इतना प्रेशर नहीं आता है। इंडिया में आप गौर कर लो शादी के बारे में कि जिनके माँ बाप बहुत ही कूल हैं, बहुत ही कूल मतलब जिनकी खुद की लव मैरिज हुई है, तो उनके बच्चों को डे 1 में पता है हम तो करेंगे लव मैरिज। और आप गौर कर लो, मां कसम उन्हीं को प्यार नहीं मिल रहा है। वो हर जगह जा रहे हैं भैया मोमोज चटनी और थोड़ा प्यार दे दो भैया, बस प्यार दे दो मिल जाए। और जिनके माँ बाप कट्टर हैं, समझ रहे, कट्टर, जो सुबह उठते टीका लगा लेते हैं माथे पे कि हमारे खानदान में किसी की लव मैरिज हुई नहीं, हम होने नहीं देंगे, वही माँ बाप, मतलब वही उनके बच्चे। आप लगा लो 15 लोगों का कैटलॉग लेके बैठे हुए हैं कि पापा एक बार हाँ कह दो, रमेश विनोद सुरेश सब रखे हैं मैंने आपके पास देने के लिए। डिफरेंट है भाई जिंदगी में। मैम आपको तो जल्दी हो गई भाई, आपकी शादी में क्या क्राइटेरिया ढूंढ रहे हो शादी के लिए आप? आर यू लुकिंग फॉर समबडी इन लाइफ? हाँ जिंदा, इतना लो स्टैंडर्ड हो गया भाई तेरा, मतलब जिंदा होनी चाहिए, मतलब वो ये कैसा क्राइटेरिया रखा है आपने? सर आपने क्यों बता रहे हो के बारे में, आपके जीजा जी हैं? हाँ बिल्कुल, अंदर से खुद एक्साइटेड है। आपकी शादी को कितना टाइम हो गया सर आपकी? 10 पत्थर ही हैं सारे यहाँ पे, बता रहा हूँ मैं आपको। कोई बात नहीं सर, मेरी शादी को 7 साल हो गए, बता दूं आपको भाई, आप शादी करो ना करो। और अभी मैंने कल ही परसों एक सर्वे हुआ इंडिया के अंदर, बॉयज यू कैन क्लैप अगर आपको बात से लगती हो, उस सर्वे में पता लगा है कि किसी भी वाइफ का स्ट्रेस 2000 टाइम्स बढ़ जाता है जैसे ही वो अपने पति को आराम करता हुआ देखती है। काफी लोग अंदर से, मुझे लगता है आपने पार्टिसिपेट किया है। अरे हाय ये लेट कैसे गया, मेरे काम नहीं खत्म हो रहे, लेट किया बेचारा आदमी। अरे ऐसा नहीं होता है। अभी मैम क्या ना, अभी आप सबसे कम शादीशुदा कौन है, कितना मतलब कम टाइम शादी का? 4 ईयर 5 ईयर्स? मैम एनीबडी मैरिड हियर सिस्टर्स? मैरिड मैम कितना टाइम शादी को आपकी? मैम सारी बड़े बड़े 15। सिस्टर आपकी शादी हो गई है? आपको नजर तो लगेगी नहीं कभी भी। हेलो जाओ निकलो फिर। ऐसा क्या सर, क्या क्वालिटी ढूंढ रहे हो? जिंदा होने के अलावा क्या ढूंढ रहे हो क्वालिटी?
बहुत बढ़िया, ये अच्छा डिसीजन होता है। जो लोग सोच के कर रहे हैं उन्हीं के डिवोर्स हो रहे हैं। नहीं करना है भाई। अभी मैं बता दूं, उनको ज्ञान दे रहा हूँ शादी के बारे में, थोड़ा सा ज्ञान दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। इनफैक्ट हर वाइफ, जो भी यहाँ पे जिनकी वाइफ हो रखी है, बता रहा हूँ मैम, हर वाइफ हर हफ्ते से आप भी करते होगे भाई, जब आप बिल्कुल आराम से ज़िंदगी में आराम कर रहे हो तभी आपके पास आएगी, अपना सर यहाँ रखेगी और फिर उसका एक ही सवाल निकल के आता है, तुम्हें कब लगा कि तुम्हें मुझसे ही शादी करनी थी? भाई 4-5 साल तक तो मैंने भी आंसर बनाए, मैंने कहा वाइब मैच करके क्लिक कर गए थे हम एक दूसरे के साथ, पर मैम 7 साल हर हफ्ते यही सवाल। 7 साल के बाद मेरे पास एक ही आंसर है, अमावस्या की रात थी, कुत्ते भौंक रहे थे, मेढक टटर कर रहे थे, मुझे लगा कर लेनी चाहिए, मैंने कर ली। हर हफ्ते वाइफ का डिस्क्लेमर आता है मैम, हर हफ्ते आता है। डिस्क्लेमर क्या होता है? वो होता है कि तुम्हें पता नहीं तुम्हें क्या मिला है। हेलो, तुम्हें पता नहीं तुम्हें क्या मिला है भाई साहब, बाकी की बीवियां कितना खर्चा कराती हूं, मैं तो इतनी लो मेंटेनेंस हूं। मैंने कहा ओ मेरी अल्टो, लो मेंटेनेंस अल्टो, जहां भी तूने सर्वे कराया उन औरतों से मुझे मिलवा एक बार, कि उन्होंने कैसे डिसाइड किया कि यू आर द बेस्ट। एक तो भाई अभी जिंदगी में नया नया सफर है आपका, अभी बिल्कुल जो नया फेस होता है मैम, अभी तो 10 साल हो गए ना आपके, तो मैम पति की अच्छी क्वालिटी सुन लो है, तुम्हारे में नहीं है वो बात अलग है। पर पीछे बोलते होंगे जाके, वो दीवार से बातें कर रहे हैं, दीवार क्या कर रही है, तू पागल होगी? मैम ऐसा बस ये अच्छी क्वालिटी की सुन, आपका गुस्सा सुन लेते हैं, तो करते क्यों आप गुस्सा? ये वजह बताओ ना मैम, ऐसी मतलब मन हुआ आज की पीट दूं पति को? सीख ले, यही होने वाला तेरा भाई। ये हर जगह पे कॉमन है मैम, बहुत सिंपल बात है। फॉर एग्जाम्पल एनी कपल हु आर सिटिंग हियर, इफ यू आर डेटिंग, आई एम टेलिंग यू, हर कपल की खूबसूरती होती है, वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग ना हेल्दी रहेंगे, वी विल ईट हेल्दी। जैसे कई लोगों का मन होगा यहाँ खाना देख के पगला गए होंगे, खा लेते क्या होता है, आज ही तो करना है। मैम टेलिंग मैम, मेरी वाइफ और मैंने प्लान किया, द फर्स्ट थिंग स्टार्टेड इज आज से हम खाएंगे लेस ऑयली फूड। आप यकीन मानो हमने पराठे बनाए बिना तेल के, चिपक ही गए वो। फिर हमने खरौच ही खाए, मैंने कहा जो खरौच सकते हैं वही खा सकते हैं। सेकंड डे में लेकर आगे रागी, एनी पीपल हु आर ईटिंग रागी हियर क्लैप, रागी पीपल यस क्लैप क्लैप क्लैप। सर आप 2 3 4 5 6 8 काफी, जो नहीं खा रहे हैं हम अच्छा कर रहे हैं। भाई मैं कैसे बताऊं, क्या नाम है भाई आपका? शिवम भाई, मैंने पहली बार खाया रागी, ऐसा लगा जैसे मैं महीन पिसा हुआ सीमेंट खा रहा हूं। समझ नहीं आया कि अंबुजा का है बिरला का है। अगर आप उसे खाने के बाद पानी ना पियो, दांतों में जम जाता है, फिर लेबर चौक से लेबर बनानी पड़ती है हटाने के लिए उसको। फिर एकदम से एक तो गिव मी लाउड चेयर, अगर आपको मेरी बात से लगती हो, आप उस एज पे आ गए जहां पर आप कंसर्न हो अपनी हेल्थ के लिए कि आई वांट टू बी फिट, ठीक है? तो द प्रॉब्लम विद हेल्दी फूड, यू कैन क्लैप, कि द प्रॉब्लम विद एनी हेल्दी फूड इज कि उसे खाने के बाद ही लगती है भूख। एंड सेकेंडली मैम, हेल्दी फूड इज नेवर रोमांटिक। आई कैन गिव एन एग्जांपल, जैसे एक अच्छा कपल, आपको नहीं मान रहा मैं, जैसे कपल अच्छा बैठा, क्योंकि आप तो गुस्सा कर दोगे पति पे। तो एक कपल बैठा हुआ है एंड फाइन डाइन रेस्टोरेंट में, कैंडल जल रही है, दे विल लव टू ऑर्डर पिज्जा पास्ता लजानिया, इट लुक्स एक्सोटिक, मजा आ गया। वहीं पर कोने में कपल बैठा हुआ है, कैंडल जला के सैलेड खा रहा है, ऐसा लगता है कि गाय और बैल बैठ के जुगाली कर रही है। टमाटर के बच्चे कब खत्म होंगे भैया, नहीं आता मजा मैम। फिर तो आजकल एक तो हमने डाइटिशियन हायर किया, डाइटिशियन कोई हायर करा कभी लाइफ में? मैं कह रहा हूं आपने किया हुआ मैम हायर, रिजल्ट कहां है? नहीं ऐसे नहीं बोला मैंने, मतलब मैम ऐसा नहीं बोल रहा मैम, मेरे पे आ पाए, मेरी वाइफ पे नहीं आ पाए, कोई दिक्कत है, आई विल टेल यू रीजन। मैम कैसी गंदी गंदी बातें करता था वो, बिल्कुल इसकी तरह कि जिंदा चाहिए। मैं बता रहा हूं आपको, मुझसे कहता पहले दिन, भाई मुझे कह रहा पता क्या कह रहा है, कहता रजत यू हैव टू क्विट जंक फूड। मैं कहा हेलो, विनर्स नेवर क्विट। कह ओह चला गया ऐसे। फिर नेक्स्ट दिन आया, कहता कि आपको पता है एक कॉन्सेप्ट होता है कि जितनी आपकी प्लेट कलरफुल होती है उतनी वो हेल्दी होती है। मैंने फिर क्या मैं कसाटा आइसक्रीम खाऊं? नहीं पिज्जा के ऊपर जेम छिड़क लूं, जेम्स छिड़क के खा लूं पूरा पूरा? करा हो हेलो। फिर मुझे भाई फालतू की बातें कह रहा, मुझे कहता यू आर वॉट यू ईट। मैं भिंडी हूं, इसे भिंडी लग रहा हूं, मैं भिंडी लग रहा हूं? भाई भिंडी नहीं हो, भिंडी हेलो। अरे मैम जैसी लग रहे हो, बेस्ट लग रहे हो, बस ठीक है, बस कहीं कट मत जाना। कई लोग अलग से मंगाते हैं मैम, ठीक है। अरे मैरिड बाय एनी चांस मैम? अरे नहीं, मैं कोई शादी नहीं करा रहा आपकी, यू डिजर्व बेटर बॉयज, स्पेशली फ्रॉम दिस बॉय, आई एम टेलिंग यू। आप कहाँ से हैं आप?
मुंबई की लड़कियां सबसे, भाई साहब मैं बता रहा हूँ, लो मेंटेनेंस ही है। मैं मुंबई की लड़कियां मुझे सबसे अच्छी लगती है। आई हैव डेटेड वन इन माय लाइफ, आई कैन टेल यू। जैसे बाकी लड़कियों का क्राइटेरिया होता है कि मुझे लड़का ऐसा चाहिए, उसके ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मुंबई की लड़कियों का क्राइटेरिया बहुत सिंपल होता है। उनका ये होता है कि मैं रहती हूँ सेंटर लाइन पे, तो मुझे सेंटर का लड़का चाहिए। मैं रहती हूँ वेस्टर्न पे, तो वेस्टर्न का चाहिए, और हार्बर का किसी को नहीं चाहिए कि वहां के लोग सिंगल मर जाए, कोई टेंशन नहीं है हमारे को। डू यू मैम, इट्स ट्रू मैम? यस, इट्स ओके। पर आपकी फिर अभी क्या ढूंढ रहे हो मैम? व्हाट आर द क्राइटेरिया? आई एम अज्यूमिंग व्हाट आर, इफ कंफर्टेबल इन टेलिंग योर एज। 29 मैम। 20s आर द बेस्ट। 20s में कहता ना आपके अंदर वो होता है कि ना मुझे ना दुनिया देखनी है। 30s में बहुत देखी दुनिया भाई, सब दुनिया कमी नहीं है भाई साहब, कुछ नहीं रखा इनमें। अभी 20s में आप जिम जाते हो टू लुक ब्यूटीफुल, हम जाते हैं 30s में जिम की बुरे ना दिखें। हम मेंटेनेंस के लिए जिम जा रहे हैं, पता है आपको? अभी आप करते हो BYOB, ब्रिंग योर ओन बूज, हमारा होता है ब्रिंग योर ओन बेबी। हमारा अलग चल रहा है मैम। अभी आ रहा है आपका तो अलग चल रहा है। अपने पति पे गुस्सा करना, जाके आपको पीट देना है। आप तो पति पे हंटर रखते हो कर मैं आ गई मैम। आप में से एक तो मैम बहुत लोगों को सफाई का नशा होता है। सफाई का नशा मैम, किसी को सफाई का नशा आप में से? गर्ल्स, एनीबडी हु हैज लाइक कीन इंटरेस्ट मैम? थोड़ा थोड़ा मतलब जहां पति साफ कर दे। बहुत बढ़िया जिंदगी चल रही है आपकी। भगवान ऐसा पति सबको दे, बट ऐसी बीवी किसी को ना दे। कितना प्यारा पति रखा है आपने। रामू काका है वो आपके? पर कोई बात नहीं, जैसी पति आपके, मैं मना नहीं कर रहा, अच्छी बात है। जैसे मेरी वाइफ को सफाई का बहुत गंदा नशा है, पगला खिंच चुकी है वो। मतलब होता है ना कि जैसे कोई भी, मेरा घर कैसा दिखता है अनएक्सप्लेन। जैसे कभी आप घर में घुसे हो और आपके मुंह को, घर को देख के लगा आपके मुंह से निकला है कोई आने वाला है, वैसा मेरा घर रोज दिखता है। मतलब वो हाथ में कॉलिन लेके घूमती ही रहती है, कांच साफ कर देगी, मैग्नेट लगा के दोनों साफ कर देगी। पगला सपन है। मैं कह सकता हूं दिवाली आई इस बार तो पगला गई थी कि माई डेज आर कमिंग, माई डेज आर कमिंग। दिवाली पे मैं कह सकता हूं 1 महीने सफाई करी है। दिवाली के दिन मुझे अभी तक याद है उस दिन कि लक्ष्मी माता खुद चप्पल उतार के हमारे घर में आई थी कि बेटा तेरा घर गंदा नहीं करूंगी मैं, पैसा ले ले, आशीर्वाद ले ले, मैं निकल रही हूं, वापस ऐसे निकल रही हूं यहां से। मैं लिख के दे रहा हूं मैम, किसी दिन हमारे घर में चोरी हो गई या कोई क्राइम हो गया तो पुलिस ने हमें पकड़ना है कि सालो तुमने सबूत मिटोए हैं। कौन बताया कि मेरा घर मम्मी मेरी वाइफ ने साफ कर रखा है ऐसा? अभी तो बहुत डिफरेंट है भाई, आप ट्राई करो अभी मैम। देन वी आल्सो ट्राइड वेट, कंट्रोल वेट करने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट करते हैं हम लोग। एक तो कह रहा ईट सीजनल फूड, लिखा सुना आपने बात? मैं कहा भाई ब्लिंकिट पे जो 20% ऑफ है वो मेरा सीजन है, 23% ऑफ है, तो ये तो आ रहा है मेरे घर में भाई, ये चल रहा है। फिर उसने बोला कि ईट एवरीथिंग इन मॉडरेशन। पता है आपको काम कॉन्सेप्ट मैम? तो आजकल बाउल आते हैं जिसमें आप इतना खाना खा सकते हो जितना कंफर्टेबल आपके लिए। एक बाउल आते हैं छोटे मैम, हमने वो बाउल कटोरी दैट इज कॉल्ड पोर्शन कंट्रोल बाउल, हमने मंगाया, अच्छा लगा 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते के बाद हमने वही बाउल 4-4 खाने शुरू कर दिए। पर्पस ही डिफीट हो गया हमारी जिंदगी का उसका। भाई वी ट्राइड एन नंबर ऑफ फूड, भाई कुछ नहीं होने वाला वेट लॉस करने के लिए। देन वी ट्राइड आल्सो मैम कॉल्ड दिस कॉल्ड किनोआ। एनीबॉडी हु इज ईटिंग किनोआ? वेरी गुड। थर्मोकोल क्या उबाला गया है मैम, अच्छा लगता है टेस्ट उसका, वो तो जिसमें भी डालो वो बन जाता है वो। अरे मैम आपका टेस्ट अलग है, आपको तो लड़का भी अच्छा लगेगा, बता रहा हूं मैं आपको। मैं देख ले क्या मैम, आर यू मैरिड बाय एनी चांस? मैरिड एनी चांस? नहीं, यू हैव अ बॉयफ्रेंड? मैम ही डजंट माइंड, ही इज अ क्वाइट फ्लेक्सिबल गाय, डोंट वरी मैम, ही इज क्वाइट फ्लेक्सिबल। These Noida, Faridabad people, no, ignore them, ma'am. Ignore them with due respect. अच्छा भाई कितना पानी पीना, नहाना किसी को यहाँ पे? मैम आपके मजे हैं, देखो यहाँ पे पानी रख गया, जो रख गया तो रख गया, वरना पति आ जाएगा रखने। उससे बात करते हैं, आपकी लव लैंग्वेज क्या है? OTP? मैम हैव यू डिस्कवर्ड, कपल्स हियर, हैव यू डिस्कवर्ड योर लव लैंग्वेज बाय एनी चांस? लव लैंग्वेज? चाय लैंग्वेज, या एसिडिटी इज दी सेकंड आउटपुट। छाती में एसिडिटी हो रही है। इंडिया में लव लैंग्वेज फूड ही होती है, बता रहा हूँ। जैसे मैम फॉर एग्जांपल मैं गुड़गांव से आता हूँ, वहां पे लव लैंग्वेज है डाउरी। पूरा खानदान खुश होता है कि बहू पैसा लेकर आई है। नहीं भाई अलग होता है भाई, समझे? गलत बोल रहा हूँ मैं आपको, धीरे धीरे समझ में आया आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी वाइफ और मैं एक दिन बैठे कि लेट्स डिस्कस अवर लव लैंग्वेज गाइस। किसी को पता लव लैंग्वेज की? मैम पीछे गर्ल्स कैसे हैं मैम, आप लोग ठीक हैं? सर लाइक आप दिख तो रहे मुझे बट आप हिल ही नहीं रहे। अगर मर जाओगे तो किसी काम आ जाओगे, मत करो काम, जिंदा रहना है आपको ताकि किसी गरीब पे काम नहीं आओ, ठीक है ना? आर यू मैरिड बाय एनी चांस? मैं आल्सो यू आर मैरिड? आप कोई भी दो, चिंकी मिंकी जो भी बोल सकते हैं अपने आपको। नो नो, हाउ ओल्ड आर यू सिस्टर?
कितने साल के हैं आप? हाँ 20। सिस्टर सारी आपके साथ की हैं, इनका सामूहिक विवाह होगा, इकट्ठा एक जगह ही हो पाएगा। मैं बता रहा हूँ 28 की खेल बन जाएगा, जो केले रखते हैं 6 केले वैसे आपको रखा जाएगा कि ये जाए, कोई बात नहीं मैम कर लो। मैं बता रहा हूँ जैसे फॉर एग्जांपल जितनी भी सिंगल गर्ल्स है, एज अ ब्रदर आई विल गाइड यू। जीवन में जब भी आप शादी करें मेरे से एक राय ले लीजिए, जिसको मैं काफ़ी सफ़र कर रहा हूँ जिससे, मैम शादी करनी है आपको अपने घर से मिनिमम, आपको नहीं मतलब आप एकदम आंखें में हाँ आ गया आपके, एक रामू काका मिलके दूसरा नहीं मिलना आपको, ऐसे नहीं होता मैम, ऐसे मत, ठीक ऐसे एकदम से आंखों में आगे कर लूंगी, ऐसा नहीं है। सिस्टर जब भी शादी करनी है आपको करनी है शादी अपने घर से मिनिमम 20 से 25 किलोमीटर दूर, इससे पास मैं शादी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आई विल टेल यू द रीजन। मैम थोड़े दिनों पहले 3.5 महीने पहले मेरी बहन की शादी हुई है, हमने उसके लिए रिश्ते कहां कहां नहीं ढूंढे। एक बार को तो हम अंडमान निकोबार गए थे कि हमारी बहन जाए वापस ही ना आए, पर गाइस जितना हमने उसका बुरा चाहा उतना बुरा हमारा ही हुआ। जो भाई उसको लड़का समझ में आया, मैं कैसे बताऊं, मेरे घर से वो 20 मीटर दूर भी नहीं रहता। 20 मीटर में कैसे बताऊं, विदाई में हमने गाड़ी में धक्का लगाया, पहुंच गई, वो धक्के में पहुंच गई। ड्राइवर ने बोला कहां चलना है भैया, मैं कहा यहीं तक चलना था। ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला, उसने मेरी गुद्दी पकड़ी है, कह रहा देख रहा है गाड़ी के ऊपर सिक्के और बताशे रखे हुए हैं, ये हिले नहीं एक बार भी अभी तक। मैंने कहा खुद मेरे हाथ में, मैंने कहा धक्का दूंगा फिर फेंकूंगा, उतने पहुंच गई वो। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं। मुझे डांट रहा है बंदा, कह रहा भाई साहब 10 साल से कर रहा हूं विदाइयां, ये पहली विदाई की है मैंने न्यूट्रल गियर पे। मैं कह रहा हूं उसको भैया बुरा मत मानो, समझो ना शादी का जो एल्बम बनता है, वीडियो एल्बम बनता है, उसमें ये शॉट गाड़ी का जाता अच्छा लगता है। उतने वीडियोग्राफर आया, कह रहा सॉरी भैया मैं ये कैप्चर ही नहीं कर पाया, जब तक मैंने कैमरा पर किया आपकी बहन जा चुकी थी। अभी कह रहा रीटेक मिलेगा, मैंने कहा 25 लाख का पड़ा है ये टेक, इसका रीटेक नहीं होगा किसी भी तरीके से एक बार भी। अब इन्होंने पड़ोस में लगा था एक सीसीटीवी कैमरा, हमने निकाली उसमें से फुटेज और शादी के एल्बम में डाल दी कि गई हमारी लाडो, लाडो गई। मैम मैं कह रहा हूं इतनी पास शादी, हमने अपने घर का गेट लॉक किया है कि चलो फाइनली हमारी बहन चली गई है। 15 मिनट के बाद खुद आ गई, टक टक। मैंने क्या हो कि चार्जर रह गया, अपने घर में देखना यार। इतनी चंड बहन है, अभी तक हमारे घर से उसने वाईफाई डिस्कनेक्ट नहीं किया है, उसी पे ऑपरेट करिए। देखो आप एंजॉय करो, बट क्लैप करोगे तो मेरी एनर्जी बेटर रहेगी आपके साथ। अच्छे लोग आप लोग यार। मैम वही आप बताओ, कुछ नहीं है। मेरी मम्मी विदाई के टाइम पे फूट फूट कर रही थी, कह रही बेटा भूल मत जाना। मैं कहा याद करने का मौका तो दो। मैं कहा जब भी गेट खोलता हूं सामने खड़ी मेरी बहन, मैंने कहा वो बहन खड़ी मेरी मैक्सी में, वो मेरी बहन है मैक्सी वाली बहन। मैम कोई फायदा नहीं है ऐसा। सोसाइटी में एक रस्म होती है मुंह दिखाई, पता है आपको कॉन्सेप्ट कॉल मुंह दिखाई? मेरी बहन की सोसाइटी ने बॉयकॉट कर दी, कह तेरी बहन को हम बचपन से देखते आए हैं, बनता इसका मुंह दिखाई। बल्कि तेरी बहन हमारे घर की एक्स कंजक रह चुकी है, हाईएस्ट पेड कंजक रह चुकी है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं बनता इसका। एक और दिक्कत हो गई है, हर संडे को जीजी घर पे खाना खाने आते हैं। अब चौहान परिवार, क्योंकि जीजी की रिस्पेक्ट बहुत होती है हमारे यहाँ पे, पूरा चौहान परिवार सुबह सुबह कोट पैंट पहन लेता है और जीजू खुद हाफ पैंट में आते हैं। गुस्सा नहीं आएगा? क्या आदमी है यार ये आदमी। एक और कॉन्सेप्ट, हमारे घर में हमारी बहन ने कुछ नहीं बनाया आज तक, कुछ नहीं बनाया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां जाके वो मास्टर शेफ बन गई है, हर दिन कुछ बनाती रहती है और डब्बे में ले आती है हमारे लिए। अब एक और रिचुअल है नॉर्थ में मैम, कि जब भी बहन कुछ देती है तो उस डब्बे में कुछ देखना पड़ता है। तो मैं जाता हूँ हलवाई की दुकान पे मिठाई लेने के लिए, उतने में 4 डब्बे वो हर घर पे दे जाती है। अब हलवाई, उसका घर और मेरा घर एक लव ट्रायंगल में बैठे हुए हैं, इसी में हमारा जीवन चल रहा है। एक और दिक्कत है नॉर्थ में, बहन जब भी घर पे आती है, आपको पता है रिचुअल होता है कि जब भी बहन घर पे आती है उसे भाई छोड़ने जाता है। ऐसी फीलिंग आती है कि मैं अभी भी अपनी बहन को ट्यूशन छोड़ने जा रहा हूं। मैं कहा जी पैसे और रख लो, उसको डे बोर्डिंग में रख लो ना, और उसको क्या रखना है हमारे पास। अब ये कि मैडम 3 दिन पहले अच्छी बात हो गई कि मैं अमेजोन पे कुछ शॉपिंग कर रहा था, तो मुझे एक डोर मैट दिखाई दिया, मैंने फटाफट ऑर्डर कर दिया। गाइस यहाँ आने से पहले मुझे आ गया था, मैंने घर पे लगा के आया हूं। उस डोर मैट पे लिखा है, ओ बहन तू कल आना। नहीं चाहिए मुझे बहन यार ये। एक तो आप सारे बहुत डिफरेंट जगह से हो, आप ट्रैवल कितने लोग ट्रैवल करते हैं, मतलब फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं काफी लोग। इंडिगो से कितने लोग आए हैं? इंडिगो से काफी लोग आए हैं आज। मैं बता रहा हूं भाई, इंडिगो का पर्पस अब आपको लैंड कराना नहीं है, उनका पर्पस है लैंड कराती है आपके मुंह पे थूक देना, थैंक्स फॉर चूजिंग इंडिगो। आज उन्होंने एक नया स्कैम चालू कर दिया है, उतरते ही बोलते हैं हमें घमंड है कि हमने आपको निर्धारित समय से पहले उतार दिया है। मैं कहा दीदी मेरी कैब 1 घंटे बाद की बुक है, अब ये 1 घंटा क्या करना है मुझे?
अंताक्षरी खेलने, ताश खेलें, क्या खेलूं तेरे साथ में? अच्छा, जिस दिन ये लेट होते हैं उस दिन बात नहीं करते, कहते उतरो, उतार दे के निकल जाते हैं। एक तो बेस्ट पार्ट क्या हो गया, जब से अहमदाबाद का पता है, अहमदाबाद का हादसा हुआ है सूरत भाई, अहमदाबाद का जो प्लेन का क्रैश हुआ है, उसके बाद एक बहुत चीज़ आया है, मेजर चेंज आया है। आप तो रिलेट ज़्यादा करोगे लेटेस्ट से कि हाँ मैम क्या हो गया, उसके बाद ना अब जब लोग फ्लाइट में बैठते हैं, किसी फ्लाइट में बैठते हैं, लोग अब सीरियस हो गए हैं। अब वो एयर होस्टेस को देखते नहीं है, सुनते भी हैं। तो उसकी आंखों में दिख रहा था मुझे ये यू गॉट अ पॉइंट बट यू आर गेटिंग नेगेटिव पॉइंट्स। ये मस्त आदमी है भाई आदमी। क्या नाम भाई आपका, नाम क्या भाई आपका? हाँ यादव भाई, यहां तक पहुंच गए। इनकी हिस्ट्री में हम गाय चलाते पहुंच। भाई बहुत सही लाइफ है तेरी भाई, शादी में ये दहेज के चक्कर में रुका है एग्जैक्टली। वो कह रहे बेटी बाद में भेज देना पर दहेज पहले दे देना। भाई से बता रहा हूं, इनकी रीलें बनती है, देखा रील देखते हैं कि दामाद को हमने 100 एकड़ की प्रॉपर्टी, 6 चेने और फिर आखिरी में आता है बेटी दी है। भाई इसी की रील बनेगी, बता रहा हूं मैं आपको। सर आप उसके अकाउंटेंट हो क्या? आप इतना, इसका आधार कार्ड बता दो एक बार, आप बता दो आधार कार्ड। आप काफी जेलस फील कर रहे हैं आपसे, मैं देख पा रहा हूं। सर रुको कोई बात नहीं सर, अपनी वाइफ की अच्छी क्वालिटी बता दो, अच्छी क्वालिटी। सर नहीं सोच पा रहे, किसी और की बीवी सोच के बताओ। देखो पता लग गया, वो पता लग गया। देखो वो ये सर जिनकी खुद के घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरे के तोड़ते नहीं है ऐसे। हाँ प्लीज बताइए सर, अच्छी क्वालिटी याद आ रही हो तो। मैं कह रहा हूं उनको बोलो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जॉब करे। फिर उन्होंने बोला आपको साफ करना पड़ेगा। सर लाइफ तो आप कहां से ब्रदर आप? सर वैसे तो ये वैसे वाले बहुत दिक्कत में होते हैं। अरे सर ठगते हैं वहाँ, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं भी बता रहा हूँ, वाराणसी आ रहा हूँ धीरे। मैम एयरपोर्ट जैसे आप लोग एयरपोर्ट से इंडिगो का मैम जैसे अहमदाबाद का हादसा हुआ है, अब वो एयर शो सुनते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं बैठा था इमरजेंसी सीट पे, आज बता रहा हूँ सुबह की बात, इमरजेंसी सीट पे बैठा हूँ, 2 लोग साथ में बैठे हैं। वो आती है एयर होस्टेस आई, कहती मैं बताऊंगी आपको, आर यू विलिंग टू ओपन दिस गेट, ऐसा बताने लगी। तो कह रहा विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल इन, तो उसका कह रहा कौन कौन सी हैं। उसको लगा उसने खाने का मेन्यू बता रही है वो उसको, तो कह रही हिंदी इंग्लिश। कह रहा अच्छा बोथ। उस बंदी ने समझाया, मैं बता रहा हूँ समझाया दोनों लैंग्वेज के में। उसके बाद कहती एनी मोर क्वेश्चन, कह रहा रिपीट, आप रिपीट करो इसको। भाई उसके माथे से पसीना निकला था यहां से, शी वॉज ब्लीडिंग ब्लू। कहती है अगर यही काम करूंगी तो अपनी रेडी कब लेके आऊंगी? रेडी देखा उनकी रेडी, देखिए रेडी भाई, उसमें 4 सैंडविच रखे होते, 4 सैंडविच। और मां कसम अगर वो रेडी अपनी जगह से निकल चुकी है और आपको जाना है वॉशरूम, तो आपको ऐसे लोगों के मुंह में मार के जाना पड़ता है, ऐसे लोगों के मुंह में मार के जाना पड़ता है, ऐसे 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 मार के जाना पड़ता है। वरना एक बंदे को मुंह साइड किया, मैंने कहा भैया आपके मुंह में चुप जाएगा, आप इधर मुंह कर लो, ऐसे मैम नहीं निकल सकते आपको। अब यकीन मानो, कह रहा और ब्रीफ करो और ब्रीफ करो। वो कह रही ये कार्ड रखा हुआ है इसके बास्केट के अंदर, आप कार्ड को पढ़ लो। कह रहा हेलो, मैं यहां पर हायर एजुकेशन के लिए नहीं आया, आपको जो जानते हो वो बताओ मुझे। ऐसा वो दिमाग का वो निकल गया, बात भी नहीं करी उसने। अभी दोनों 15 मिनट तक डिस्कस कर रहे हैं कि है ना हमें ऐसे खोलना है। दूसरा कह रहा नो ब्रो हमें ऐसे खोलना है। 15 मिनट तक उन्होंने डिस्कस किया, फिर उनको रियलाइज हुआ कि साथ में मैं भी बैठा हूं। फिर उन्होंने मुझे देखा, कह रहा भैया आपको आता है क्या? मैं कहा नहीं, जिस कॉन्फिडेंस से आप कर रहे हो आप खोल लोगे, मेरा काम कूदने का, मैं कूद जाऊंगा आखिरी में, मैं देख लूंगा अपना। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक बताऊं, जब से एयरपोर्ट एक्सपेंड हो रहा है मैम, आई डोंट एंजॉय एयरपोर्ट। मैं फ्लाइंग कर रहा हूं 15 साल से और बता रहा हूं अब मजा नहीं है। एयरपोर्ट जब तो छोटे थे बढ़िया थे। इंदौर का एयरपोर्ट सर आपको पता ही है, अभी छोटा है। अहिल्या बाई जो वही है ना, आप हाँ वो छोटा एयरपोर्ट, वो भी क्यूटी पाई एयरपोर्ट है। ये तो अब तो बढ़ा दिया, मैं एयरपोर्ट बढ़ा दिया, ये सुपर कॉरिडोर की ऐसे सब बढ़ गया आपका पूरा एरिया। मैम एयरपोर्ट तो छोटे थे ना, मैंने इंदौर का एयरपोर्ट, पुणे का एयरपोर्ट, इवन गोवा का एयरपोर्ट बनता देखा है, देहरादून का, ये गोरखपुर का भी यहाँ पे गोरखपुर। मैम वो 1 रूम सेट एयरपोर्ट थे पहले, 1 रूम सेट, समझ रहे हो कैसे होता? मैं गोरखपुर का आज से याद है, अब तो उन्होंने बड़ा कर दिया। 6 महीने पहले तो छोटा एयरपोर्ट था, 1 रूम सेट, इतना छोटा कि मेरा प्लेन लैंड हुआ है, किसी ने खिड़की पे खटकाया, कह रहा कैब चाहिए, कैब चाहिए। मैंने कहा लगेज, कह रहा मैं निकाल लूंगा, जैसे आप टेंशन क्यों ले, आप साथ में चलेंगे हम साथ में। ये अपना मिस करता हूं। मेरा एयरपोर्ट दिल्ली का T3 एयरपोर्ट है, उस पे गेट नंबर 62 है, 62। मैं चंडीगढ़ जयपुर की तो फ्लाइट लेता नहीं क्योंकि दिखता है वहां से वो।
कि लेनी क्यों, जब दिख ही गया वहां से दिख ही गया है। अब यकीन मानो अगर मुझे दिख गया, मैं एयरपोर्ट में घुसा हूं और लिख गया मुझे गेट नंबर 62 आ गया मेरा, मैंने तो अपनी प्लेलिस्ट बना ली है, कान में गाना लगाता हूं फुल वॉल्यूम 30, एक ही गाना चलता है, चल कांवड़िया चल कांवड़ी। नॉर्मल गाने पे नहीं पहुंच पाऊंगा मैं किसी तरीके से भी। हमारे एयरपोर्ट में घुसते ना सूर्य नमस्कार पोज बना रखा है, पता है T3 पे सूर्य नमस्कार का पोज ये इसलिए बना रखा है, करके जाओ, क्योंकि लास्ट तक पहुंच नहीं पाओगे आप, करके जाओ वहां पे। मैम मैं अभी मैं उड़ीसा में गया था, रौरकेला, एनी आइडिया अबाउट दिस रौरकेला? मैम उसका एयरपोर्ट पे गेट नंबर एक ही था, एक ही गेट, उस पर चौक से लिख रखा था, चौक से अराइवल, चौक से, मैंने कहा डिपार्चर करे पीछे लिख रखा है, क्योंकि जो प्लेन लैंड होता है वही टेक ऑफ करता है, क्योंकि एक ही प्लेन जाता है वहां पर रनवे के बाद, रनवे पे क्या बस नहीं है किसी के लिए भी, रनवे उतारते हैं फिर कहते हैं रन अवे, निकल जाओ से। इतना प्यारा एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट मिस करता हूँ मैम। गोरखपुर का एयरपोर्ट T3 पे होती है चेकिंग, आपके एयरपोर्ट चेकिंग होती है, आपसे आवाज निकालते हैं पै पै पै, तब छोड़ते हैं। गोरखपुर पे मजा ही आ गया, बंदरे बोला मेरी आंखों में देखो, कह रहा खाओ माँ कसम कोई खराब सामान लेकर नहीं आए। मैंने कहा माँ कसम कोई खराब सामान नहीं है, कह रहा जाओ। देखो ये होता है अपनापन, मैं मिस करता हूँ मैं। इवन और का एयरपोर्ट तो मैम 1RK है, 1RK ही बनाया उन्होंने। मैं जिस भी एयरपोर्ट जाता हूँ ना फोटो खींचता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैं लास्ट टाइम कब गया था। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट जाता हूँ तो इंदिरा और मैं आते हैं फोटो में, या गांधी और में आते हैं, या इमरजेंसी और में ऐसे फोटो में दिखते हैं। रौरकेला का एयरपोर्ट मैंने फोटो खींची, मैं दिखाऊंगा आपको, मैंने ऐसे फोटो खींची है, उसमें पीछे प्लेन के अंदर कॉकपिट में पायलट बैठा हुआ है, वो ऐसे कर रहा है मेरी फोटो में, कर जब खींचा तो मैं आई जाऊंगा इसके अंदर, आई जाऊंगा मैं इसके अंदर। आई वर्ड भाई मजा नहीं आता मैम धीरे धीरे। पर फॉर एग्जाम्पल अगर आप शादीशुदा हो तो प्लीज डिस्कस योर लव लैंग्वेज। लव लैंग्वेज ब्रदर, आपकी लव लैंग्वेज सर क्या है आपकी? चाय पीना, वेरी गुड, काफी लोगों की चाय है यहाँ पर, चाय और एसिडिटी। कॉपी कर रहे हैं आपके आंसर। और कोई पीछे सर? गर्ल्स एनी लव लैंग्वेज मैम, इफ यू हैव एनी लव लैंग्वेज? या कौन, मैं? हाँ तुम, बस तुम, ओहो, या प्लीज। मैम इट्स अ ट्रीटमेंट, मैम इट्स अ ट्रीटमेंट, इट्स इनफैक्ट वाइल्ड ट्रीटमेंट। मैं नहीं करी बात। इसको समझ, ये निब्बा है लड़का, समझ नहीं आएगा इसको। निब्बे को लग रहा है प्यार से बस जिंदा होनी चाहिए, जिंदा होगी दिक्कत हो जाएगी तेरी। ये आदमी ऐसी पत्थर नहीं बनाई, देख हर बात में बात कर रहा है, ऐसे नहीं बस, क्योंकि बीवी बोलने नहीं देती। मैं बता रहा हूँ भाई, किसी भी रिलेशनशिप, चाहे वो शादी हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चलाने के लिए क्या करना चाहिए मैम आपके सबसे इतना लंबा चलाने के लिए? एक एडवाइस, पत्नी की सुनना चाहिए। किसकी पत्नी? अच्छा खुद की, चलो मैं मान लेता हूं। सर आप भी शादीशुदा लग रहे हैं, आप भी। कितना क्या करना चाहिए शादी चलाने के लिए? अब तो रोने को हो गए थे सर आप, इतना पर्सनल लगे, रोना पड़ता है। अरे सर ऐसा क्या हो गया सर? डिवोर्स 50-50 हो जाएगा, खत्म। अभी कल से खुश हो गया आप, रोने लग गए भाई वो तो। अबे भाई वो रोने लग गए सर, इतना क्या दुख हो गया आपका? सर आपके हिसाब से फॉर अ ब्यूटीफुल मैरिज क्या करना चाहिए? लिसन टू वाइफ, गुड सर। ब्रदर मैं आपको बताता हूँ जिनको, हाँ मैं बता रहा हूँ सर, मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं। ऐसा नहीं होता है, आई विल टेल यू। इसमें क्या होता है, देयर इज अ रूल कॉल्ड 5 सेकंड डिले रूल। क्या रूल है? इसमें क्या होता है कि जब भी आपकी गर्लफ्रेंड या बीवी आपसे कोई बात कर रही है, उसे सुनो और जो पहला थॉट मन में है उसे रोको, क्योंकि पहला थॉट अगर आपने नहीं रोका, छाती पे कोहनी आने वाली है। समझ, ये पगले हैं, बता देते एकदम है, मुंह से बक दिया, फिर आधे घंटे सब जस्टिफाई करोगे, वो मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब वो नहीं, मेरा मतलब वो नहीं। जस्टिफाई, मैं कह रहा हूं रोको, पी जाओ। कह रहा हूं पहला आंसर डेथ है मेरी, दूसरा सर्वाइवल है। जैसे एग्जांपल देता हूं, और हमेशा याद रखना भाई, एक लाइन बोलनी है, गोगल गोगल गोगल। क्या बोलेगा भाई? हाँ वो तो हर लड़की तो ये बोलती होगी, मैं निकल रही हूँ इधर से आगे। आई विल गिव एन एग्जांपल भाई। जैसे फॉर एग्जांपल परसों मेरी वाइफ मेरे पास आई, कहती रजत मैं सोच रही हूँ कि मैं चली जाऊँ मार्स पे। भाई आप और मैं समझदार आदमी, हम क्या बोलेंगे, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे? यही तेरी मेरी गलती है। छाती पे हो जाएगी, हेलो आई एम एन इंडिपेंडेंट गर्ल, आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टू। हेलो इतनी बड़ी खुद होगी, मैं अपने आप कर लूंगी, आपकी जरूरत नहीं है मुझे। तुझे कुछ नहीं करा, तुझे एकदम रोकना अपने आप कर, बोलना है वहां पे पानी नहीं है, पानी ले जाओ। बल्कि मैं गाली निकाल रहा हूं, मैं तुझे अर्थ तक छोड़ दूंगा, अर्थ तक। उसके बाद अपनी ओला ऊपर लेके निकल जाइयो, गो गर्ल नेवर कम बैक। ठीक है, इट्स अ गुड पार्ट ऑफ लाइफ। मैम थोड़ा समझाना पड़ता है, पगले हैं, आपको समझ चुका हूं मैम, आपको। अरे आप चिलो, मैं बता रहा हूं, मैंने तो एक दिन और बताऊं दूसरी चीज। कभी भी बॉयज जिनकी शादी नहीं हुई है, एक चीज याद रखना, कभी भी आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी जो भी आपको वाइफ गिफ्ट दे रही है, उस गिफ्ट में ना मैटर नहीं करता गिफ्ट में क्या है, कभी मैटर नहीं करता है।
मैं कह रहा हूँ गिफ्ट में गोबर हो। मैटर करता है कि उसकी जो रैपिंग में इन्होंने इमोशंस लगाए होते हैं, फीलिंग्स होती है इनकी, तो हमें नहीं फाड़ना होता ऐसे। उसी एक टेप उतारो, मुंह पे लगाओ, माथे पे लगाओ, तुम्हारा मुंह कम पड़ रहा है इसका बोरो कर लो, इन पे भी लगा दो आप। उसमें जो कार्ड लिखा था ना, कार्ड भाई, उसमें भी फीलिंग होती है कि बेस्ट ह्यूमन ऑन अर्थ, यू मे लिव लॉन्ग स्माइली। लड़कों की तरह नहीं, कुछ लगवाना है इसके ऊपर, लगवा दो, कुछ चमकता सा लगा, चमकता सा जब चमकता सा लगवाओगे उसके लिखना भी है। भाई तेरी हैंड राइटिंग साफ है, तू लिख दे। क्या लिखना है लिख दे, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट से ऊपर हम कहीं नहीं जा रहे हम लिखने के लिए जिंदगी में। मैम हमें समझ में आ गया। गिफ्ट में ध्यान रखना, जैसे मेरी वाइफ और मैं एक दिन डिस्कस कर रहे, लेट्स डिस्कस अवर लव लैंग्वेज। आजकल एक कॉन्सेप्ट चलता है विच इज कॉल्ड क्वालिटी टाइम। मैम डू यू नो दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड क्वालिटी टाइम? इस अंदर क्या होता है कि पति पत्नी दोनों साथ में बैठते हैं और फिर झगड़ते हैं। हाँ, क्वालिटी टाइम के सर बहुत अच्छा है, आप तो करते ही होगे, आप तो बात ही नहीं करते। सर का बहुत, सर मैं आपको देख पा रहा हूँ, मतलब मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ आगे 10 साल बाद ऐसा कर लोगे सर। कितना टाइम शादी को आपकी भी? 19 साल। सेम भी बाई चांस बीच में कंपनी चेंज कर लियो आपने ऐसा? एक ही क्या? उसे डिवोर्स कहते हैं, उसे पूरा प्रॉपर्टी जाएगा, प्रॉपर्टी हो भी तो। भाई बिल्कुल रिस्क लेके बैठा है भाई ये बंदा। जिया जी क्या समझा रहे हो आप इसको? हाँ अरे सर ये कोई शगन का लिफाफा है जिसके नाम पे लिखवा चुका है ये? भाई जो भी कर रहे हो ठीक है, लाइफ में करना है, टेंशन नहीं लेनी है आपको। सर बता रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे फ्रेंड डिस्कस की लेट्स डिस्कस लव लैंग्वेज, तो पहले बोला गिफ्ट्स। पहली बात तो वॉइस, हमें गिफ्ट्स मिले ही कहाँ हैं? मैंने उसको बताया कि मेरी एक एक्स गर्लफ्रेंड थी, उसने मुझे बताया था कि उसने एक बार मेरे लिए गिफ्ट सोचा था, तब मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। कह रही ओके दैट्स ऑन लव लैंग्वेज इज कंप्लीटली फाइन। फिर हम क्वालिटी टाइम, इसमें कहते हैं कि हम पति पत्नी दोनों साथ में बैठते हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ में बैठते हैं और पत्नी फिर इंस्टाग्राम देखती रहती है, देखती रहती है। अगर मैं उसे कुछ बोलूं तो कोहनी मार के मुझे वो 30 रील फॉरवर्ड कर देती है कि ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हें हर पे दिल बना के भेजना है। और अगर ना बनाऊं तो फिर मेरे पास आती है कि तुमने ये नहीं देखी, देखनी पड़ती है। फिर दूसरा होता है मैम आज करेंगे हम नेटफ्लिक्स एंड चिल, आज हम देखेंगे मूवी। आप गौर करो, जो मूवी मुझे देखनी होगी ना, मेरी बीवी ने पता नहीं कैसे देख रखी होती है, वाइस एंड वर्सा। यहां पे गाइस हर वाइफ या लड़की एहसान करती है अपने बॉयफ्रेंड या पति पे कि गाइस जो मूवी मैंने ऑलरेडी देख ली है सिर्फ तुम्हारे लिए, जस्ट टू स्पेंड गुड टाइम विद यू, मैं देख लेती हूं। कितना प्रेशर है वो मूवी मुझे एंजॉय करने का। मैं मूवी देख रहा हूं, मुझे वॉशरूम जाना है, मैंने पॉज करके बैठा हूं कि यार नहीं देखूंगा, एकदम से पॉज कर दिया कि अभी तो आएगा मेन सीन, मैं गॉल ब्लैडर फाड़ लूं, देख लूंगा ना, किडनी स्टोन कर लूंगा अपने आप को, क्या करूं मैं अपने लिए, चाहिए हो सकता। फिर मैम इंडिया में सबसे अच्छा क्वालिटी टाइम में तो क्या होता है? वो होता है लड़ाई। लड़ाई से अच्छा क्वालिटी टाइम कहीं नहीं होता है। उसमें वो सारे एलिमेंट मिलते हैं जो आपको अपने बॉयफ्रेंड पति से क्वालिटी टाइम में चाहिए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट थिंग, अनडिवाइडेड अटेंशन पूरी मिल रही है, दोनों के फोन बिल्कुल साइड में है, सुन तो रहा हूं, बोल चलो क्या बोलना है, पूरे इमोशन रूम में हीट पैशन सब हो रहा होता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। पर सबसे अच्छा लव लैंग्वेज इंडिया में निकल के आती है पति पत्नी की, वही होती है कि जब पति पत्नी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ में बैठे हुए हैं और भाई दुनिया की बिचिंग कर रहे हैं, ध्याय बिचिंग, उनका चल नहीं रहा, उनसे हो नहीं रहा, भाई ये तो टूट जाएंगे 6 महीने में। फिर आखिरी में हम जैसे भी ठीक ही है यार, और चादर उड़ लेते कि चलो कोई बात नहीं, या बहुत कूल है मैम कल्चर में। पर जैसे मेरी अपनी दिल्ली से कितने लोग दिल्ली गए हैं, कभी आप में से कितने लोग दिल्ली गए हैं? काफ़ी लोग दिल्ली गए हैं। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिल्ली मैम, मेरी अपनी दिल्ली बहुत अलग होती है। आपको बताता हूँ एग्जाम्पल, जैसे हर स्कूल में एक टीचर होती है, यू कैन क्लैप, एक टीचर जिसको आज भी अगर मैं नाम लूंगा आपको गाली देने का मन करता है, यस और नो? यस। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी टीचर मैथ्स की थी जिसको हम लोग हमेशा गाली देते थे। वो टीचर क्या बता रहा हूँ हमको, स्कूल के ब्रिंगिंग में एक दिन टीचर हमारी तरफ मुड़ी और हम तैयार थे उसे गाली देने के लिए। तो कहती बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैंने कल एक बुक पढ़ी थी, उसमें लिखा है कि जब आप किसी को गाली देते हो तो उससे उसकी उम्र बढ़ जाती है। आप देख रहे हो वो औरत हमारे साथ खेल गई, हमारे मुंह में गाली से रोक ली, देंगे नहीं सौ, देना नहीं देंगे इसको, देना नहीं है इसको। आप सोचो कितना बिफ्कू वाला। मैम अब एक दिन निकला, 2 दिन निकला, हमारा मन तो कर रहा है गाली देने का, पर हम दे नहीं पा रहे। हमने कहा इसकी उम्र नहीं बढ़नी चाहिए। लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भाई वो साले गाली तो नहीं होती, जिया जी गाली तो नहीं होती, आपकी बात है ऐसा, कुत्ते गाली, मैम ऐसा डिस्कस कर रहे हैं हम आपको। मैम एक हफ्ते के बाद हम क्लास में, हम जैसे बच्चे थे तो हमने डिस्कस किया कि भाई अगर यही सीन है, अगर यही रूल एप्लीकेबल है तो फिर हम एक दूसरे को दे सकते हैं। वो दिन है, आज का दिन है, हमारा पूरा ग्रुप अब अमर है।
हमने प्लान किया कि 2080 में हम यहाँ से शिफ्ट होकर जाएंगे मार्स पे, क्योंकि मेरी बीवी तो पहुंच चुकी होगी, थोड़ा पानी और ले जाऊंगा, ठीक है ठीक है। यही हमें समझना पड़ता है, धीरे धीरे समझते, धीरे धीरे लाइफ के अंदर पार्ट होता है। बट ऐसे बेस्ट पार्ट मैम, सर आपकी वाइफ की अच्छी क्वालिटी अगर आप बता सको फटाफट, बस लास्ट के 5 मिनट प्लीज। वाइफ की अच्छी क्वालिटी, बुरी तो याद ही होंगी आपको, और सर दर्द वो खुद ही देती है, ना नहीं करा एक बार देख चेहरे, ये रिकॉर्ड करके डालो उनकी वाइफ को, भेजो जरा, आज बता रहा हूँ मैं आपको, आज रात में सर दर्द और कॉफी दोनों नहीं मिलेगा सर, ऐसा नहीं होता है ऐसे लाइफ के अंदर, धीरे धीरे सीखना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली का बताता हूँ, जैसे ना जिंदगी में, डू यू एग्री कि दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है? क्लैप यस, टू बी हैप्पी इन लाइफ, दोस्ती। क्योंकि देखो आप लोग यहाँ दोस्त, आई एम अज्यूमिंग कि कोई डेट नहीं करा, तो वैसा मैं बताऊँ मैम, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में बड़ी दिक्कत ये है कि जब आप किसी को अपनी प्रॉब्लम बताते हो तो दूसरे के पास उसका सॉल्यूशन है उसकी बड़ी प्रॉब्लम। आप किसी को बोलो भाई मेरे सर में दर्द है, भाई मुझे माइग्रेन रहता है, माइग्रेन, दूसरे को मैं लुट गया, भाई मैं बर्बाद ही हो गया हूं, भाई बर्बाद ही हो गया हूं। इंडिया में कभी नहीं होता लाइफ के अंदर, ये बहुत सिंपल एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल मेरी लाइफ में ना मैम ऐसे जिंदगी में, क्योंकि अपब्रिंगिंग हमारी ऐसी हुई है दिल्ली में, ये इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल मेरा दोस्त है जो आज भी 30 साल की दोस्ती हमारी है, हम बचपन से जानते हैं दूसरे को, और स्टिल वी आर कंटिन्यूइंग। द रीजन इज हमने वो हर चीज शेयर करी है जो कोई और शायद शेयर नहीं करते, हर किसी का दोस्त होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे आज तक याद है, मेरा जिसका नाम आदित्य है, आदित्य को लगा लो मैम, मुझे जिंदगी में पहली बार किसी लड़की पे क्रश हुआ था तो सबसे पहले मैंने इसको बताया था, और इस कमीने ने सोसाइटी में हर घर में जाके बताया सिवाय उस लड़की के। मैंने कहा आदित्य ये क्या क्या करा, तेरा फायदा कर दिया। दोस्त है जिसने बोलना कि मैंने तेरा फायदा कर दिया, कभी फायदा नहीं किया उस आदमी ने। मैंने क्या फायदा है, तो कह रहा दिल्ली में ना भाई जन्माष्टमी होती है, एनी आइडिया अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ जन्माष्टमी? जैसे इंदौर में क्या होता है, दही हांडी टाइप होता है, मुंबई में दही हांडी होता है, हमारे में क्या होता है कि इन आर कंपाउंड व्हाट वी डू इज कि हम कंपाउंड के अंदर झांकी लगाते हैं बच्चों की, जैसे सब बच्चे भगवान बनते छोटे छोटे, एंड इट्स अ झांकी, दैट्स द ओनली थिंग व्हिच वी डू इन दिल्ली। अब वो भी बंद हो गया है। तो मैंने क्या हुआ, कह रहा भाई जो लड़की तुझे पसंद है ना, वो 4 साल से जन्माष्टमी में बनती है राधा, तुझे क्या बनना चाहिए? कृष्णा। मैंने कहा बनवा देगा? कह रहा फटाफट चल RW अंकल के पास। एनी आइडिया अबाउट दिस अंकल कॉल्ड RW अंकल? सोसाइटी के सबसे घटिया आदमी, जिसका मात्र काम है बच्चों को रोक के पूछना कि बेटा कहां जा रहे हो। आपने वर्ड सुना है, भाड़ में जा रहे हैं। किसी बच्चे ने इनको देख के इन्वाइट किया, अंकल जी हम जा रहे हैं भाड़ में। सक्सेना अंकल हमारे थे। सक्सेना अंकल की खूबसूरती थी कुछ, देखिए अपने अंकल होते हैं जो मूछ रखते हैं, पर मूछ ऐसे रखते हैं वो होठे पे रखते हैं पतली सी लाइन बिल्कुल बीचों बीच। बाय गॉड ऐसा लगता था जैसे उन्होंने होठों के ऊपर आईब्रो रखी हुई है। हमने अंकल का नाम रखा था 3 आईब्रो अंकल आ गए हमारे। आप समझो सक्सेना अंकल ऐसी होते हैं हमारे, मैम अच्छी बात होती है। मैं कहा फिर तो अंकल के पास गया, मैंने कहा अंकल जी मुझे कृष्णा बनना है। आदित्य ने कहा अंकल जी से कृष्णा बनना है। कह रहे बेटा 2 दिन का टाइम है, हम ऑन द स्पॉट डिसाइड करेंगे। मैंने कहा गो ओके। मेरे पास 1.5 दिन है, मैं घर पे आ गया फटाफट भाई। अब मैं 1.5 दिन घर पे आया, मैंने फटाफट निकाला मम्मी की एक येलो रंग की साड़ी और एक मोरपंख जो बुक में रखा था कि डबल होगा, डबल कभी नहीं होता, वो निकाल लगाया। 1.5 दिन प्रैक्टिस करी खूब, क्योंकि देखो मैम वो लड़की 4 साल से बन रही है, वो तो वेटरन है। मेरा तो ये लॉन्च था तो मुझे तो मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने प्रैक्टिस करी। जन्माष्टमी में अंकल के पास भाग के मैंने कहा अंकल जी बन के आ जाऊं। कह रहे बेटा हमने डिस्कस किया है कि आप बनोगे शिव जी। मैम मुझे 1% दिक्कत नहीं थी बनने में, बट दी ओनली प्रॉब्लम वॉज कि मुझे पता है कि मेरी सोसाइटी के पास, गरीब सोसाइटी के पास शिव जी के कपड़ों का बजट नहीं है। मैंने कहा अंकल जी मुझे आप ईंट पत्थर कुछ बनवा लो, मैं ये नहीं बन पाऊंगा। अरे बेटा दिक्कत क्या? मैंने कहा अंकल जी कपड़े। अंकल ने कहा बेटा ट्रस्ट मी। गाइस यही मेरी गलती थी, मैंने उस आदमी पर ट्रस्ट कर लिया। जैसे मैंने उस पर ट्रस्ट किया, उसने बोला आदित्य खाली हो? कह रहा हाँ अंकल खाली हूं। कह रहा बेटा घर से एक टब ले आओ बड़ा वाला। वो टब ले आया। कह रहा बेटा अब इसमें पानी भर लाओ। पानी भर लाया। कह रहा बेटा ये लो 50 का नोट, दुकान से ले आओ उजाला। 4 बूंदों वाला आया नया उजाला। अंकल ने उस दिन बूंदे नहीं गिरी थी, व्हाइट रंग की कैप तोड़ी और तर करके डाल दिया पानी में। इनफैक्ट घोला भी नहीं, मुझे पानी में डाला छप करके, छप छप कि खुद ही घुलता रहेगा आपस में, छप। फिर मुझे निकाला है पानी से। मैम निकालने के बाद आप यकीन मानो ऐसे सूखने के बाद यहां पर लगाया उन्होंने एक चार्ट पेपर भाई, उस पर स्केच पेन से बनाया है एक लेपर्ड प्रिंट। एक होती है बर्फ की सिल्ली जिससे धुआं निकल रहा होता है। बैठा दिया गाइस, बैठा दिया। गाइस आप लोग कहते हो ना सिल्ली सिल्ली ऑन दी हवा, वो हवा जान दी का है मुझे पता है। आप मैम गौर करो, मैं यहां गुस्से में हूं, सबको लग रहा है मैं कैरेक्टर में हूं। सब मेरी मम्मी को कह रहे क्या बच्चा बना है आपका।
सक्सेना का मेरी मम्मी का हाथ ही चिल्ला, कह रहे बहन जी जिस हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस है अगले 4 साल के लिए लड़का लॉक हो गया, यही बनेगा। मैं कहा सक्सेना मजाक नहीं, वरना मैंने आज तीसरी आंख खोल देनी है, बना दूंगा तुझे नो आईब्रो अंकल, बना दूंगा तुझे नो आईब्रो। बता रहा हूं मैं तेरे को, पर तो जिंदगी में जितने भी लोग यू कैन क्लैप, हर एक इंसान जो यहाँ बैठा है उसके एक पक्का ऐसा दोस्त है जीवन में कि जब भी आप पैनिक होते हो, परेशान होते हो, जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपने दोस्त रखा हुआ है, उसे फोन करते हो या उसके पास जाते हो, उसको अपनी प्रॉब्लम वर्ड बाय वर्ड सुनाते हो। यस क्लैप, यस यू हैव दिस फ्रेंड, सबके होगा। बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है आप सुनाते हो, पर इसकी कोई राय लेते नहीं हो। ये आपने अपने वेंट आउट का मैकेनिज्म रखा है, इसका इनपुट कभी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि इसकी जो राय होती है वो निहायत ही इलॉजिकल प्रीमियम क्वालिटी घटिया राय होती है, 2 कौड़ी की राय। वो मेरा दोस्त आदित्य है, मैं आदित्य को उठाया, मैंने कहा आदित्य भाई, अब आदित्य को क्या हुआ, अब आदित्य मेरे साथ में था, तो आदित्य को क्या हो गया कि आदित्य के साथ ही बुरा अच्छा हुआ, क्योंकि मुझे लगता है आज भी बेस्ट हुआ। आदित्य को क्या हुआ, आदित्य को बनाया गया नंदी, और जैसे को पता लगा कि उसके कपड़े नहीं है, वो घर से लेके आया एक व्हाइट रंग की चद्दर, सेल्फ स्पॉन्सर्ड। हमने उसको ब्रेड में ऐसे रोल किया, मुंह बंद किया और अब सिल्ली के साइड में लटा दिया। अब मैं परेशान हूं, वो तो है ही। अब मैम 5 मिनट्स इनटू दिस ब्यूटीफुल एक्ट, सिल्ली का पानी रिस रहा है और वो बंदा अब ट्रांसपेरेंट हो जा रहा है। मुझे ऊपर से दिख रहा है रूपा रूपा रू। मैंने लात मारी, मैंने कहा तीसरा रूपा पूरा तो दिख रहा है इस आदमी का, है रूपा है। अब क्योंकि मैं परेशान हूं, मैंने उसको उठाया, मैंने कहा आदित्य भाई उठो उठो। अब वो खुद लपटा चदर के अंदर, कहता हाँ, अगर देख रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है, कह रहा साले वो छोड़, मुझसे पूछ मेरे साथ क्या हो रहा है। लोग मेरे कान में कैसी कैसी बातें करके जा रहे हैं। चलो यू बिंग अ लवली ऑडियंस, ताली एक दूसरे के लिए, बहुत ही प्यारे लोग आप, ताली एक दूसरे की, ताली ताली। डू हैव टाइम, टाइम डन डन ये डन। चलो ताली 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 मैम के लिए, ताली जो फॉर बीइंग सो सपोर्टिव। पति में गुस्सा निकालेंगी, कम से कम आज ना निकालें। फॉर बीइंग 19 years of marriage, still happy and he is married. ताली 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 सर के ताली दे दो। फॉर ऑल दिस 12 चैंपियंस, ताली ताली ताली। फॉर द गाइस मिर्ची, शिमला मिर्ची, डिपेंड्स अपॉन दी लाइक बजट कंस्ट्रेंट। और मैम जिनकी शादी पीछे हो रखी है, ताली 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 ताली। कुछ सिंगल गर्ल्स पीछे बैठी हुई हैं, दे आर हैप्पी इन लाइफ, डूइंग गुड इन लाइफ। सर खुश हैं सर। आज एक और याद रखना बदर, जब भी जिनकी शादी हो गई है, ये देखो ये जो सर है ना, सर बता रहा हूँ, इन सर का बता रहा हूँ प्रोफाइल आपको, ये अभी घर जाके बीवी को फोन करेंगे, बिल्कुल मजा नहीं आया वहाँ। इतना चालू आदमी बता रहा हूँ मैं, उसकी आंखों में दिखा है, ऐसे एक्ट करेगा बिल्कुल यार, पता नहीं क्या फालतू बोर कर दिया, पता नहीं क्यों बोल रहे हो। पूरा यहाँ पे रात में देखो स्विमिंग पूल को अगर हर की बॉडी नहीं बना दी, हर की बॉडी बना दिया इसने। मैं बता रहा हूँ ये आदमी वेंटिलेशन में बता रहा हूँ, ये आपकी आंखों में है सर। आपकी शादी 2 बनती हैं है एक, कोई बात नहीं सर, आपका टाइम खराब चल रहा है, ठीक है होता है, पर कोई बात नहीं सर। 19 साल शादी को हो गई, बहुत लंबा, 19 ही होता आपने, 10। और कितने बच्चे आपके मैम? क्या 2 हो नहीं पा रहे, क्या हुआ है? टाइम नहीं मिल पा रहा आपसे, क्या हो गया इतना? अफोर्ड नहीं कर पा रहे, दूसरे के बीच में घुसने में अफोर्ड कर पा रहे हैं। इसे 4 मिली हुई हैं लड़कियां, ये होता है भाई। मैं बता रहा हूँ, जिस आदमी शादी हो ना, उसको लगता है कि अगर मैं सिंगल होता ना मचा देता। ये वाले जोन में आदमी है, बता रहा हूँ मैं आपको। RW के हेड बनेंगे, बता रहा हूँ, आगे जाके बता रहा हूँ। हाँ अरे ये पिच खोते रहते हैं, फिर बाद में कोई छक्का और मार जाता है। सर सुधरना है आपको, ठीक है, ऐसे नहीं रहना। पर अच्छे आदमी पर ताली, सर के लिए ताली फॉर बीइंग सच अ स्पोर्ट। गुड, आई एम जस्ट विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आप जो भी लाइफ में कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। वैसे आप जो भी मैम, आप तो जो भी कर रहे हो, गुस्सा निकालना पति में, जो भी निकालना, पति को मैम हफ्ते में आधा घंटा छोड़ दिया करो। पति से मासूम आदमी कोई नहीं है दुनिया में, आई विल प्रूव यू मैम। पति मैम देखो, पति निकलता है रोज घर से काम करे, आप भी निकलते हो, गो गर्ल, आई हैव नो प्रॉब्लम। नहीं बोलेगी हेलो फेमिनिस्ट, ऐसा आप भी निकलते हो काम करें, हम भी आते हैं, यू ऑल्सो कम बैक इफ यू वांट टू, ठीक है। काम आता मैम, घर आके ना आदमी चाहता है कि वो अपने सारे कपड़े त्यागे और अपनी सुपर पावर हाफ पैंट पहनना चाहता है वो, और हाफ पैंट पहनती वो लाश बनना चाहता है। तब टीवी पे क्या बोलता है ना, बनी कि मैं उड़ना चाहता हूं, भाई मैं लेटर रह जाता हूं, मुझे कुछ नहीं काम करना, मैं लाश बना रहूंगा। अभी बता रहा हूं, आप 1 हफ्ते लेकर मायके जाओ, कहीं जाओ, आपका पति जिस सोफे पे बैठेगा ना, उसी प्लेट खाना खाएगा, छाती में बालों में कुरकुरे साफ कर लेगा, और आपके आने से आधे घंटे पहले ही अपना घर साफ करेगा। तो इतना परेशान मत हो आप, छोड़ दो पति को, और हफ्ते 1-8 घंटे छोड़ा करो किसी और के साथ, ताकि वो मिलके बात कर सके। जैसे देखो उनको पत्नी छोड़ा, देखो खुश हो जाएंगे।
ये वाली बात है ना, ये वाला आती है ना, पति देखा, पति वॉक करते हैं, पति आगे भागता है, ये वो है। फिर इनकी पत्नियों को याद आता है कि अच्छा और पत्नियां बड़ी चालू होती है, पत्नियां रुक जाती है, एकदम से रुक जाती हैं। फिर दिखता है ऐसा आदमी, फिर इनको लगता है कि मेरे साथ एक एलेक्सा भौंकता जा रहा था, तय कुछ कर रहा था, फिर पीछे मुड़ के देखता है, इतिहास गवाह वो औरत चल के कभी नहीं आती, वो औरत चल के नहीं आती, वो ऐसे खड़ी हुई है, कह रही है हाँ तुम आओ साले, आओ बता दी तुम्हारे को। उस वॉक को कहते हैं वॉक ऑफ शेम। और कभी भी कोई शादी का कुछ भी कर लो, यू नो ब्रदर, आप जो भी नोट करना, शादी का वेट गेन करते हैं लोग, पता है आपको वेट गेन करते हैं क्यों, क्या रीजन है पता आपको, क्या बताओ, है नहीं पता, बताता हूँ। होता क्या है कि कुछ एक ऑर्डर करता है, फिर जो बचता है दूसरा ठूस लेता है, फिर दूसरा ऑर्डर करता है, वो उसको ठूस लेता है, सरप्लस में चल रहा है भाई। उस चक्कर में यकीन मान, मैंने कोल्ड कॉफी और हॉट कॉफी मिला के पी हुई है कि जब पैसा लग गया तो खत्म तो कर लूँ भाई, मजे तो कर लूँ मैं। आदमी मैम बहुत वो आदमी वाला अलग रहता है, ठीक है ना मैम। पति की तारीफ सुन नहीं पा रही, इनकी आंखों में लग रहा है कि अच्छा, अरे मैम हर वाइफ का, हर गर्लफ्रेंड का कॉमन है, जाएंगी पार्लर, जाते होगे आप पार्लर, जाते होगे पार्लर, भाई पार्लर जाएंगी, एकदम से आएगी, तुमने कुछ नोटिस किया चेहरे पे, कुछ नोटिस किया है। एक तो मैं स्पॉट द डिफरेंस खेलने के लिए बैठा नहीं हूँ यहाँ पे भाई, स्पॉट द डिफरेंस मुझे पता नहीं, कुछ नहीं पता। मैं एक तो मैं हर पार्लर वाली दीदी को कहना चाहता हूँ कि दीदी जो भी आपने डेंटिंग पेंटिंग का काम पकड़ा है, उसे काम करने का एक टैग लगा दिया करो कि आपने क्या क्या काम किया है गाड़ी पे। मेरी गाड़ी सर्विस होती है, उसमें कहता है इंजन ऑयल बदला, ब्रेक शू बदला, मुझे पता होता है भाई। अब वो नोटिस करें, तूने अपना मुंह चेंज करा है, करी नहीं स्पॉट करो। एक तो क्या होता है भाई, करा के आएंगी आईब्रो, जब भी करा के आते हैं आईब्रो, लाल चुटी से कटवा के आती है, लाल चुटी से ऐसा दिखता है, अलग से दिखता है कि मुड़वा के आई एकदम से। और तुम घर में अगर बैठ कर कॉल जरा चिल्ला पड़ती है, भाई वो पार्लर वाली के मुंह में बैठी होती है, मुंह पे, और ऐसे कैसे होती है, तब इनको कुछ नहीं कुछ नहीं हो रहा मुझे, कुछ नहीं हो रहा बड़े। लास्ट वीक तो मेरी बीवी में कैसा था, अपर लिप लोअर लिप दोनों करा के आ गई, बंदर की तरह फूल के आ गई थी, ऐसे फूल के आ गई थी। मैंने कहा ये मुंह थोड़ी देर फ्रिज में रख के इसे ठंडा कर 4-5 घंटे के लिए, इसे एकदम से ऑन रोड मत निकाल कहीं बाहर। बताओ आपको मैम, बिफोर आई जस्ट एंड, लड़ाई किस बात हुई आपकी कभी पति से? आपकी तो खैर होती है, रोजी होती है भाई। आपकी लड़ाई किस बात हुई है पति से लास्ट? आपका पेट्रोल खत्म ही नहीं होता आपका भाई। सर आपकी तो हर बात तो कुटाई होती होगी आपकी, लड़ने वाले। हाँ, शी इज राइट एंड यू टेक लेफ्ट देन। ये मैं बता रहा हूँ, चालू आदमी बता रहा हूँ मैं आपको, होता नहीं जिनकी एक शहर में बीवी होती है, गांव में बीवी होती है, ये वैसे आदमी बता रहा हूँ मैं आपको। पर मैं बता रहा हूँ आपको मैम, शादी का लड़ाई किसी बात पे, सर आप तो मानते हो शादी का तो आपका मुंह खोलती लड़ाई है, मानते बात सर? आपको किसी बात लड़ाई हो सकती है। मेरी बीवी से सर 1 हफ्ते लड़ाई चल रही है, 1 हफ्ते से, और जिस बात पे चल रही है मैं खुद हंस रहा हूँ कि इस बात पे लड़ाई कैसे हो सकती है। आई विल गिव एन एग्जांपल। किस बात है? डिस्क्लेमर, मेरी गलती है, ठीक है, डिस्क्लेमर। मैंने मैम गलती से, मैं गलती मान रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, मैंने गलती से ब्लिंकिट से लास्ट हफ्ते, मतलब आज मंडे हो गया, लास्ट मंडे को मैंने गलती से ब्लिंकिट से 1 किलो टमाटर एक्स्ट्रा ऑर्डर कर दिए थे। अब हर दिन सुबह उठते सवाल है, इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, इसका क्या करना, लाश है कोई, ये ठिकाना लगानी है आपको कहीं पे भी, फेंक दो दूसरे के मुंह में, फेंक के मारो। रील बनाते हैं 8 टमाटर बड़े मजेदार, 8 टमाटर बड़े मजेदार। खत्म तो करे इस लड़ाई को यार, किसी से भी लड़ाई हो सकती है, ये जिंदगी में याद रखना। समझ रहे हैं मेरे भाई? इसे कुछ नहीं आ रहा समझ। ये पगला है, निब्बा पति बनेगा ये, बता रहा हूं मैं आपको। ये वाला पति नहीं होती जो शादी की पहले बार में कि यू कंप्लीट मी, फिर इनसे पूछ 15 साल का, कंप्लीट तो कर दो सेंटेंस। ये पगला आदमी। इन्होंने मैम शादी के 102 साल में क्या होता है, 1-2 साल में क्या होता है, यू सेलिब्रेट ईच एंड एवरी फेस्टिवल, यू वेट फॉर द ओकेजन्स टू कम। ओ माय गॉड, नाग पंचमी इज कमिंग, लेट्स सेलिब्रेट। यू सेलिब्रेट एवरी फेस्टिवल। 20 साल के बाद 10 साल का पूछ, इन्हें गिफ्ट देने का, दूसरे को गिफ्ट इनके क्या होते हैं, तुम मुझे गिफ्ट मत दो, मैं तुम्हें गिफ्ट ना दूं, कैंसल। और अगर गिफ्ट देते भी तो वो देते हैं जो घर में सामान खराब हो रहा होता है। मैम लास्ट गिफ्ट क्या मिला है आपको? शू, कि जा भाग जाए यहां से, दिखना मत। नहीं ऐसा मैं एग्जांपल दे रहा हूं मैम। ये ले शूज है, कहां ये ले शूज हैं, ये भी, और उनको खाने में अच्छा लगते होंगे ना ये वाले की क्या निशानी पड़ते होगे पीठ पे। नहीं जो भी कर रहे हैं, ताली आप दूसरे की, ताली एक दूसरे के लिए, बहुत ही प्यारे लोग। आई एम जस्ट विशिंग यू ऑल द बेस्ट। बैक टू योर होस्ट। ताली होस्ट के लिए ताली यार, बहुत सो सपोर्टिव मैम, इट्स नॉट अ इजी जॉब। ताली ताली दूसरे की, ताली 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 ताली। Thank you so much. Give it up for Rajat, everyone.
All right, amazing. Thank you so much for being an absolutely wonderful audience. To our champions, thank you आपकी energy के लिए, आपके passion के लिए, आपने जो stories share करी है पूरे दिन में. And to our community members, thank you for joining us and for supporting us in this journey. And with this, we invite you for drinks over networking. We have DJ and a lot more waiting for you. So mingle, meet your new people and have a lot of fun. With this, I'm your host, Ruchi Shah, signing off. Thank you so much. Today